Jai Hind to one and all. I, Garima Pandey, welcome each one of you present here for this insightful lecture on media effects on society and politics, legacy media and new media. Today, we will explore how media has evolved from traditional mediums like newspaper and TV to dynamic digital platforms that shape our world in real time. We are honored to have with us Dr. Anup Kumar, an esteemed professor of communication in the School of Communication at Cleveland State University, Ohio, USA, and an expert in media and communication, whose extensive research and global experience make them the perfect guide for today's lecture. I would like to extend a heartfelt welcome and gratitude to you, sir. We are truly honored to have you here with us. I also welcome Head of Department, Professor Dr. Assi Thaledi sir, Professor Ashok Tyagi sir, Dr. Preeti Singh ma'am, Mr. Ram Prakash Tiwari sir, Mrs. Shaili Sharma ma'am, Mr. Shike Majid sir, and all the students of Ganesh Shankar Vidyarthi Subhati Department of Journalism and Mass Communication. I also welcome different lecturers and assistant professors present here from different colleges, Mr. Sunny Gord sir, and Ritu Sharma ma'am, Amit Kumar sir from Polytechnic Department, Lakshay Khanna sir, Ashish Mishra sir, and Subhash Chandra Mishra sir from Finance Department, Dr. Amrita ma'am from BA Department. Now to begin with today's event, let us seek blessings from Ma Saraswati and light a lamp as a symbol of knowledge and wisdom. I request our esteemed HOD sir and faculty members to come forward and grace the stage for lighting the lamp of positivity. Media has always played a critical role in shaping societies and influencing political landscapes, from early days of print newspaper and radio broadcast to the current era of social media and instant news updates. The media's power in settling agendas and shaping opinions has only grown stronger. Today, we will explore how legacy media and new media influence public opinion and politics, the challenge of misinformation, media regulation, and digital activism, and how the rise of new media has reshaped traditional power structures. Before I request Professor Assi Thaledi sir to take over the dais, I would like to begin the lecture with an introduction of our distinguished guest. Dr. Anup Kumar is a professor of communication in the School of Communication at Cleveland University, Ohio, USA. He completed his PhD in communication from University of Iowa in 2008. Joining academics was his second career transition before he was a journalist for more than a decade. His academic interest falls in the interdisciplinary area of media, politics, and international communication. His research focuses interactions among media, populist politics and political movements. He has conducted research on subnational populist movement in India, populist politics in the US, and the Egyptian popular uprising of 2000 and the Egyptian popular uprisings of 2011 and 2013. He has published research articles in peer-reviewed journals, including Journal of Communication, International Journal of Press and Politics, Journal of Broadcasting and Electronic Media, Journal of Communication Inquiry, Newspaper Research Journal, International Journal of Communication, Journal of Media Sociology, and Diagnosed the Public. He is also the author of Making of a Small State, Populist Social Mobilization and Hindi Press in Uttarakhand Movement 2011, published under the series New Perspective in South Asian History of Orient Black Swan. He continues to write commentary and opinion articles on media and politics in Indian news media such as The Outlook, The Hindu, Age and Age, and a regular contributor on the South Asian Media Watchdog website, thehood.org. He is currently a co-principal investigator on an international team of researchers conducting an interdisciplinary study of Indian elections that includes conducting tracking surveys during the national and state elections in India since 2013, media analysis and interviews with political strategies as well.
Thank you so much, sir, for the insightful and thought-provoking. Sorry. Thank you so much for being here with us. Now I would like to call Professor Dr. S.C. Thaledi, sir, to take over the dais for a welcome speech. Respected Dr. Anup Kumar ji, my old friend and now professor in Cleveland University, USA, and I welcome him from my management, my university, my department, and I heartily welcome to him. It is a very proud moment for us that today Professor Anup Kumar ji is with us. He is an acclaimed professor, acclaimed journalist, and basically he is a committed person. He is an activist, and I know him from very long time when he was journalist. And I was today discussing with my students. How a committed person, what you have to require to be a committed journalist, how you will get your name and fame. After that, when you will be a investigative journalist, you will not start journalism, and there are so many other words for today's journalists, what they are doing. आज यहाँ पे सब ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हिंदी में हैं और हिंदी स्पीकिंग वाले हैं, और मुझे ये गौरव प्राप्त है और हमें आज ये गौरव प्राप्त है कि हमारे प्रोफेसर अनूप कुमार भी हिंदी भाषी हैं और ओहियो में रह के उन्होंने अपना PhD किया। और जैसे आपने बताया, पत्रकारिता कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, आसान व्यवसाय नहीं है। पत्रकारिता के लिए जो लोग आसान बता देते हैं, जो लोग कहीं से टीप के कहीं से किसी का कॉपी करके अपना बना देते, ये पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। और पत्रकारिता एक ऐसा व्यवसाय है, आपका क्रिएटिविटी का फील्ड है, और क्रिएटिविटी में कुछ दिखाने का, आप वो पैदा करें, वो चीज़, वो सीन पैदा करें जो कहीं आपने देखा ना हो, ना सुना हो, और सूचना हो उसमें। तो ये है आज अधिकतर क्या है, आप सिर्फ जो है इधर उधर से कलेक्ट करके अपनी एक न्यूज़ बना देते हैं। आज हमें ज़रूरत है ऐसे पत्रकार, आज आपके सामने जो अनूप जी हैं, और अनूप जी एक अपने संकल्प से बने, वो भी पत्रकारिता करके अच्छे अखबार में पत्रकार बन गए थे और घूमते रहते थे। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, एक बहुत बड़ी यात्रा होती उत्तराखंड में, नंदा राज्य आफ्टर 12 ईयर्स, एवरी 12 ईयर्स। मैं देखा उसकी चढ़ाई पे, मैं भी चढ़ रहा था, अनूप जी भी रुकसक लगा के चढ़ रहे हैं। अनूप जी अरे वाह, यहाँ मिल गए। और उन्होंने कल्चर की स्टडी की है, कल्चर उनका फील्ड है, और एक जर्नलिस्ट के लिए कल्चर की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मीडिया और मीडिया कल्चर का एक बहुत अभिन्न अंग है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, क्योंकि कल्चर में नयापन कुछ ना कुछ मिल जाता है नए व्यक्ति के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, उसे लाइमलाइट में लाने के लिए। तो मैं जो अपने स्टूडेंट को बोलता रहता हूँ कि बी एडवेंचरस, अनूप जी वही एडवेंचर वाले हैं। अभी भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे वहाँ जाना है, उधर से उधर जाना है, उधर से यहाँ आना है। तो दिस इज द एक माइंडसेट है। आज मैं उनका इस मंच से स्वागत करता हूँ अपने विश्वविद्यालय में। उनको बुलाना एक ध्येय था, मैं कब से उनको लगा हुआ था आपको फ़ोन से जोड़ने का, वेबिनार में जोड़ने का कोशिश किए, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब अनूप जी इंडिया आएंगे, और इंडिया में भी वो बाहर की यूनिवर्सिटी में 5 साल के बाद, 6 साल के बाद प्रोफेसर को 5-6 महीने का टाइम दिया जाता है, जाइए आप कुछ करिए, छुट्टी दे दी जाती है, पेड लीव। तो ये अच्छी बात है, उसी के तहत
पिछले 4-5 महीने से पूरा इंडिया घूम रहे हैं अनूप जी, और हमने उसका लाभ लिया और उन्होंने यहाँ टाइम दिया। तो थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड आज का सबसे एक ड्रॉबैक ये है कि आज ही से हमारा एग्ज़ाम भी शुरू हुआ है, और इसलिए स्टूडेंट भी ज़्यादातर जो है उसी में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन खैर, जैसे मीडिया के स्टूडेंट हैं तो लिमिटेड ही होते हैं, आप भी जानते हैं, वेरी फ्यू। और यहाँ पे जो भी आए हैं उनके अलावा जो अदर फैकल्टी से भी कुछ स्टूडेंट हमारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे फैकल्टीज यहाँ पे आई हुई हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और राम प्रकाश तिवारी जी से मैं कहूँगा कि वो सबको जो है सर्टिफिकेट तो जरूर दें, ई सर्टिफिकेट, क्योंकि ये बहुत ही एक इंटरनेशनल सेमिनार है, इंटरनेशनल फील्ड हमारे पास है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पे अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ, और एक बार पुनः डॉक्टर प्रोफेसर अनूप जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने विश्वविद्यालय में। थैंक यू, जय हिंद। Thank you so much, sir. Now, I would like to call Professor Dr. Anup Kumar to please share his insights on today's topic. Well, good morning, everyone. जय हिंद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ इतनी तादाद में यहाँ पहुँचे, सुनने के लिए आए हैं। और डॉक्टर थलेड़ी जो मेरे पुराने मित्र हैं, और इनको उत्तराखंड के समय से, आंदोलन के समय से बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। और ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन सर्विस में जो सबसे पत्रकारों के बीच में सबसे बेहतर अधिकारी जो रहे हैं सब लोगों का, दूरदर्शन में जब रहे थे देहरादून में, और सरकार में भी रहे हैं। और हम लोग तो उसमें पत्रकार थे, इनका सहयोग रहता था बहुत ज़्यादा हम लोगों की तरफ। तो काफ़ी पहले से हम लोगों की बातचीत रही है। मैं जब भी आता हूँ तो बोलते हैं कि कभी यहाँ आने का, लेकिन कभी वो बन नहीं पाया, कि शेड्यूल बन नहीं पाया। लेकिन इस बार चलिए आया हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और ये हो रहा है कि हाँ, यहाँ तो पहले ही आना चाहिए था। तो अपने जो मैं आज जिस विषय में बात करना चाह रहा हूँ वो एक तरीके से मैं हिंदी में ही बोलूँगा। पावर पॉइंट तो अपना हिंदी अंग्रेज़ी में चलता रहेगा। तो हम लोग एक मीडिया के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? मतलब कि जैसे इसमें एक शब्द लिखा है मैंने सबसे ऊपर, मीडिया इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो मीडिया इफ़ेक्ट जो है, आप क्या सोचते हैं मीडिया का समाज के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा होता है या कम होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा मीडिया का इफेक्ट होता है समाज के ऊपर, ये प्रश्न सबसे पहले आपको क्या लगता है कि समाज में या सोशल साइंटिस्ट के बीच में ये कब शुरू हुआ? कब इन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई मीडिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इफेक्ट बहुत सोसाइटी पे होता है, तो मीडिया में जो कंटेंट है और मीडिया के अंदर जो भी चीज़ छप रहा है तो उसका असर मीडिया के ऊपर बहुत होता होगा, सोसाइटी पे बहुत होता होगा, या उस समय की राजनीति के ऊपर, पॉलिटिक्स पे बहुत होता होगा। इसके बारे में सोशल साइंटिस्ट कब आप लोगों को लगता है कि इस विषय पर सीरियसली सोचना शुरू कर दिया था हम लोगों ने? तो आप अगर इसको देखें तो ये सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, उस समय तो मीडिया नाम का डिसिप्लिन में नहीं होता था, तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका में और यूरोप में वो ये सोचने लगे कि यार मीडिया का कितना असर होता होगा। अब ये ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पहली बार एक बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर प्रोपेगेंडा जिसको हम कहते हैं उसका उपयोग हुआ दुनिया के स्तर पर। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उस समय एक और चीज़ हुई मीडिया के क्षेत्र में। कोई बता सकेगा क्या हुआ उस समय मीडिया के क्षेत्र में? दो चीज़ें हुई एक्चुअली, खाली एक नहीं।
देखिए, मीडिया तो हमारे यहाँ अखबार जो है वो 17वीं शताब्दी से अखबार यूरोप में शुरू हो गए थे और हिंदुस्तान में 19वीं शताब्दी से, मतलब डेली अखबार जो मतलब जिसको प्रिंटिंग प्रेस वाला अखबार कहते हैं, तो वो शुरू हो चुका था। लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो चीज़ नई आई वो दो चीज़ें आई, एक रेडियो और एक फिल्म। और जब रेडियो और फिल्म आया तो सडनली लोगों को मीडिया की ताकत समझ में आई। उससे पहले अखबार के समय नहीं समझ में आ रही थी ताकत उतनी। उनको लगा कि मीडिया तो बहुत पावरफुल हो सकता है। प्रोपेगेंडा, जिसको हम मॉडर्न प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो भी फिल्म और रेडियो से शुरू होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा किया। आप सोचेंगे कि अमेरिका क्यों कर रहा है प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वो अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था उस विश्व युद्ध से, वो तो दूसरे कॉन्टिनेंट में था। लेकिन वहाँ के लोगों को कैसे तैयार किया जाए कि जाके यूरोप में इतनी बड़ी जंग लड़ी जाए। अब वहाँ के लोग कहें कि भाई हमारा क्या लेना देना, वो तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की लड़ाई है और ये लोग अपने अपने कॉलोनी के लिए लड़ रहे हैं। इसका हमसे क्या, हमारे पास तो कोई कॉलोनी भी नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए इनकी यहाँ लड़ाई हो रही है यहाँ पे जर्मनी के साथ। तो उन लोगों को, अमेरिकन को लगा कि हमको तो नहीं जाना चाहिए इसको। शुरुआत में इसलिए अमेरिका उस लड़ाई में था भी नहीं। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने निश्चय किया कि ये हमारा फ्यूचर ग्लोबल पावर के रूप में, उसके लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। लेकिन अब आप आम आदमी को कैसे भेजें समुद्र के उस पार एक लड़ाई जिससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, जिस लड़ाई से उसके देश पर अटैक नहीं किया किसी ने। तो उस समय सबसे पहली बार अमेरिकन गवर्नमेंट के सपोर्ट से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ बहुत मैसिव स्केल पर। पोस्टर, रेडियो, फिल्म के द्वारा लोगों को बताया गया कि पूरा दुनिया की संस्कृति और दुनिया का समाज नष्ट हो जाएगा अगर जर्मनी जीत गया तो। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको लगेगा कि आजकल भी यही बार बार बोला जाता है युद्ध से पहले। हाँ, और अमेरिका दुनिया भर में जाके लड़ाई करता है, लड़ता है सब जगह समाज को बचाने के लिए लड़ रहा है वो, ठीक है। ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए वो हर जगह लड़ रहा है आज भी, ठीक है। उसके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया, उसके यहाँ कोई अटैक नहीं है, क्योंकि वो सब जगह के समाज को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो वहाँ की जो लोग हैं वो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, वो क्यों जाके कहीं की लड़ाई लड़ेंगे उनके ऊपर, जबकि उनके बॉर्डर पे किसी ने अटैक नहीं किया तो क्यों लड़ेंगे। तो वो प्रोपेगेंडा सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उसके बाद मीडिया का प्रभाव समझने की कोशिश हुई कि ये मीडिया जो है ये बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले सोशल साइंटिस्ट के रूप में लोगों को ध्यान आया। लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्होंने कोई साइंटिफिक तरीके से इसकी स्टडी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कभी तो शुरू ही किसी के विचार आया लोगों के बीच में कैसे करा जाएगा इसका अध्ययन। तो एक चीज तो उन लोगों को ये एक विश्वास था इनका कि अमेरिका में ये बहुत स्ट्रांग विश्वास था कि जो है आज की जो डेमोक्रेसी सरकार है वो अखबारों की सरकार है, मतलब मीडिया की सरकार है। बिना मीडिया के आप मॉडर्न डेमोक्रेसी को इमेजिन नहीं कर सकते। तो प्रोपेगेंडा एक तरफ है और दूसरी तरफ ये भी है, इसका पॉजिटिव साइड है कि बिना मीडिया के आप आज की गवर्नमेंट इमेजिन नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इमेजिन नहीं कर सकते। उसकी वजह प्राइमरली क्या है कि अब हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी तो भाई 2000 साल पहले भी थी, बहुत सारे एथेंस में डेमोक्रेसी थी, हमारे यहाँ बहुत जगह गणतंत्र थे, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो भी थे तो डेमोक्रेसी, तो अखबार तो थे नहीं। तो अखबार से और डेमोक्रेसी या मीडिया और डेमोक्रेसी का क्या संबंध कैसे होगी, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि उस समय की जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत छोटी डेमोक्रेसी होती थी। एक तरीके से पंचायत की जैसी डेमोक्रेसी होती थी, सब लोग एक दूसरे को जानते थे, एक छोटी सी सीमित जगह पे होती थी। लेकिन अगर एक बहुत बड़े क्षेत्र में हमको डेमोक्रेसी चलानी हो तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे कैपिटल से कम्युनिकेशन पेरिफेरीज तक जाएगा
और पेरिफेरी से कैसे जनता के विचार सरकार तक पहुंचेंगे या सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचेंगे। और जैसे जैसे ही बड़े बड़े स्टेट, अमेरिका जैसा एक इतना बड़ा कंट्री जो कि हमारे से 7 गुना बड़ा है, और इंडिया में भी इतना, हम लोग भी इतने बड़े देश है, इतनी आबादी है, तो यहाँ पर बिना मीडिया के तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं, और जनता को नहीं पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या सोचती है। तो मीडिया का इम्पोर्टेंस, तो इसलिए हम कहते हैं कि आज टुडे गवर्नमेंट बाय न्यूज़पेपर है, या गवर्नमेंट बाय मीडिया आप कह लें। न्यूज़पेपर से बात तो अब टीवी, रेडियो बहुत कुछ हो गया। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि टुडे गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। क्या हम ये कह सकते हैं? आप में से सब सोशल अखबार कौन पढ़ता है सुबह से उठकर, और सोशल मीडिया कौन, अपना इंस्टाग्राम कौन, कितने लोग देखते हैं? कितने लोग इंस्टाग्राम सबसे पहले सुबह उठते ही देखते हैं, या रील देखते हैं, अपने दोस्तों के अपडेट देखते हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, और कितने लोग सुबह सुबह कोई वेबसाइट खोलते हैं और अपना ही कोई अखबार देखते हैं खोलकर? हाँ, तो कुछ लोग अखबार भी देखते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है, मतलब एक तरीके से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट या सोशल मीडिया, अखबार भी तो आप इंटरनेट पर ही पढ़ते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर पढ़ते होंगे कहीं। तो आज जो है, आज की जो सरकार है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के से बनी सरकार, बिना उसके वो चल नहीं सकती है। हम सोचते हैं कि मतलब उसको भी उसकी ज़रूरत है और जनता को भी इसकी ज़रूरत है, दोनों को, क्योंकि कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जनरली क्या है कि ये जो पहला प्रश्न शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, कि भाई मीडिया इतना पावरफुल है, वो तब से चला आ रहा है कि मीडिया को समझना और मीडिया का इम्पैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसका इन्फ्लुएंस क्या है। लेकिन उसका अध्ययन जो है वो हम सोशल साइंटिफिक तरीके से करें, और ये पत्रकारों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकारों का काम है जो असर कर रहा है। अगर पत्रकारों को ही नहीं पता कि हमारे काम का क्या असर है और असर होता किस तरीके से, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि जो अखबार में है उसका जो असर है वो डायरेक्ट 2 तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। एक है कि मैंने अखबार पढ़ा और अखबार पढ़ के मुझ पर क्या असर हुआ, मैंने टीवी देखा, टीवी में समाचार सुना, मुझ पर क्या इफेक्ट, जो मीडिया का इफेक्ट है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखिए, ये इफेक्ट है, ई से, ए से नहीं है। तो इसका हमारे ऊपर, हम इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। तो कई लोगों ने शुरू में सोचा कि हम इसको डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं कि मीडिया है और मीडिया का मुझ पर इफेक्ट है। तो आप इसको एक तरीके से मान लीजिए जैसे रोशनी है, रोशनी का मुझ पे गिरी तो मैं चमक गया, मैंने दवाई खाई तो दवाई से मेरा इलाज हो गया, मुझे इंजेक्शन दिया तो मेरे को डायरेक्ट इफेक्ट जिसको कहते हैं, इस तरीके से। लेकिन मीडिया का इफेक्ट ऐसे नहीं होगा। ये शुरू के ही रिसर्च से इस बात समझ में आ गई कि मीडिया का डायरेक्ट इफेक्ट कभी नहीं होगा। इसीलिए हम जब समाज के अंदर अलग अलग लोगों को जब साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों का इंटरव्यूज़ करते हैं, पता करते हैं कि उनके ऊपर, आप अखबार पढ़ते हैं, फिर उनका नॉलेज बेस चेक करते हैं, तो सबके ऊपर बराबर नहीं हो रहा है। दवाई का असर सबके ऊपर बराबर ही करीब करीब होता है, लेकिन मीडिया का नहीं असर होता है। मीडिया एक इंजेक्शन नहीं है कि दे दिया आपको और सबके ऊपर बराबर असर हो गया, सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से असर होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से असर क्यों हो रहा है, ये समझना, इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, तो जो अलग अलग प्रकार के असर हैं, इफेक्ट हैं, वो कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं, इसको समझने का सोशल साइंटिस्ट सबसे पहले कोशिश करता है। और इसका खाली पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन एडवर्टाइजिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, आप किसी भी एरिया में चल जाइएगा, अब जो एडवर्टाइज़र होता है वो जब कोई ऐड, जो आप लोग में से कुछ लोग एडवर्टाइजिंग पढ़ते होंगे, तो जो ऐड बनाता है उससे पहले वो प्री टेस्ट करता है, वो ऐड का डेमोग्राफिक्स चेक करता है, वो देखता है कि ऐड के ये दिखाने से क्या असर पड़ेगा, ये, और वो असर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट्स नॉट दैट सिंपल। ये जैसे मैंने कहा ना, डायरेक्ट इफेक्ट, सोर्स ऑडियंस, राइट, लीनियर इफेक्ट कहते हैं हम उसको। सोर्स है और ये इम्पैक्ट पड़ गया, लीनियर इम्पैक्ट पड़ गया, लीनियर नहीं है ये।
ये बहुत घूम फिरा कर वेब से गुजर कर, एक पूरा इंटरेक्शन से गुजर कर यह सब होता है। तो जो ओरिजिनल कम्युनिकेशन का मॉडल था, सोर्स, मीडियम एंड ऑडियंस, उसके बीच में सीधी लाइन और जो बीच का जो स्पेस है उसमें नॉइज है, और उस नॉइज से डिस्टॉर्शन होता है मैसेज का, जो मैसेज जाएगा। तो आप इस बात को समझने में की कोशिश कंटिन्यूअस जारी रही है, और मीडिया भी अलग अलग तरीके से चेंज होता चला गया है। तो ये स्टडी आज भी अलग अलग प्रकार से होती रहती है। तो अब हम उसको में अगर लेगेसी मीडिया और न्यू मीडिया के बीच में देखेंगे तो मीडिया के चेंज होने की वजह से जो मीडिया के इफेक्ट को समझने की कोशिश साइंटिस्ट जो करते हैं, सोशल साइंटिस्ट करते हैं, उसमें बदलाव कैसे क्या क्या किस तरीके से आता है। पहला प्रश्न, जब वो प्रोपेगेंडा की जो मैंने कहानी आपको सुनाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि पहले पावरफुल इफेक्ट होता है मीडिया का या मिनिमल इफेक्ट होता है। तो ये प्रश्न लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसकी वजह थी कि वो ये सोचना चाह रहे थे कि मीडिया मैटर तो कर रहा है, रियलिटी की कैसे हम रियलिटी को देखते हैं, दुनिया को हम कैसे समझते हैं, क्या रियल है और क्या अनरियल है, उस पर असर है। वो जो मीडिया जो दिखाता है वो रियलिटी में जो इवेंट्स हैं उससे कैसे शेप होता है। फिर मीडिया जो है वो जो दिखाता है वो उसके सोर्सेस पे निर्भर करता है, उसके सोर्सेस सूत्र क्या हैं, जो सूत्र होंगे उसी के हिसाब से रियलिटी कंस्ट्रक्ट होगी। फिर दूसरा ये है कि मीडिया के अंदर जो भी कुछ दिख रहा है उस पर इन्फ्लुएंस कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, जिनके पास पावर है उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है, उस बातचीत का क्या असर। और इसी तरीके से मीडिया जो है वो उसके ऊपर खाली कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो बातचीत हो रही है उसका क्या असर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सड़क के ऊपर जो आम जनता के बीच में क्या बातचीत हो रही है, और वो बातचीत मीडिया में असर कैसे करता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, अगर आप लोग पत्रकार बन रहे हैं तो पत्रकार का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो अपना आंख कान खुला रखे, ये पता करता रहे लोग बातचीत क्या कर रहे हैं। कोई भी इवेंट हो जाता है तो उसकी जो रियलिटी होती है वो मीडिया में कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। तो मीडिया में कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये कहा जाता है कि एक रिपोर्टर जो है वो अपने सोर्सेस के थ्रू मीडिया की रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं किसी जगह पे गया, मैंने देखा और उसको मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली वो जो ऑब्जर्वेशन है वो पहले उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद वो और सोर्सेस से बातचीत करता है कि वो इवेंट क्या था, और तब एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। तो जो मीडिया की रियलिटी है उसको हम कई तौर पे कहते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक रूप से कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि वो लोगों की बातचीत का उसके ऊपर असर पड़ता है कि किस तरीके की रियलिटी वो कंस्ट्रक्ट होगी। तो मैं इस विषय में आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। 1930s में एक रेडियो प्रोग्राम हुआ। वो रेडियो प्रोग्राम जो था इंग्लैंड अमेरिका में हुआ, न्यू जर्सी में, और वो रेडियो प्रोग्राम एक H.G. वेल्स का नॉवल है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, और वो जो नॉवल है उसमें एक H.G. वेल्स ने, ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने इमेजिन किया था, साइंस फिक्शन का नॉवल था, कि मार्स के लोग आके हमारे पृथ्वी पर अटैक कर रहे हैं। तो ये जो रेडियो शो था इसको ड्रामेटाइज किया था इस रेडियो शो को, और इतना रियलिस्टिक ड्रामेटाइजेशन किया था उन लोगों ने कि बहुत सारे लोग जिन्होंने रेडियो पे वो कार्यक्रम सुनना शुरू किया, क्योंकि वो जो नॉवल का ड्रामेटाइजेशन है उसमें न्यूज़ रिपोर्ट के साथ शुरू होता है कि एक पत्रकार है, वो बता रहा है कि यहाँ पर बाहर से एलियंस की शिप लैंड कर गई है और ये लोगों को मार रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो शाम को उस रेडियो प्रोग्राम को देख रहे थे वो घबरा गए। कुछ लोग तो इतना घबरा गए कि वो अपना सामान वामान लेकर गाड़ी में रखकर और पश्चिम की तरफ निकल गए कि भाई भागो यहाँ से, न्यू जर्सी से। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाद में पता चला कि नहीं, ये तो रेडियो का प्रोग्राम था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करा जाए कि ये जो रेडियो का प्रोग्राम है इसका ऐसा असर कैसे हो गया, हिस्टेरिया कैसे पैदा हो गया इस रेडियो प्रोग्राम से। तो अखबारों में दूसरे दिन छपा कि बहुत सारे लोग भाग गए। वो न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन है, रेडियो लिसनर्स इन पैनिक। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बड़ा हेडलाइन था।
तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये हेडलाइन छापा तो कैसे छापा, जो मैंने अभी आपको बताया कि सोशली कंस्ट्रक्टेड था ये। उनका जो पत्रकार था वो जितने लोगों से उसने बातचीत करी, लोगों ने कहा हाँ बहुत पैनिक हो गया, इतने लोग भाग गए। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ने कहा इसको सिस्टमैटिकली स्टडी करने की जरूरत है। तो उन्होंने एक रिसर्च किया, लोगों को उस एरिया में, पूरे एरिया में सर्वे किया। सर्वे करके लोगों से पूछा आपने प्रोग्राम सुना, तो और उनका डेमोग्राफिक इकट्ठा किया और ये पता करने की कोशिश करी कि किन किन लोगों ने प्रोग्राम को सुना और उसके बाद उन लोगों ने क्या क्या किया। उस रिसर्च में उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि आपने प्रोग्राम शुरू से सुना या बीच में ज्वाइन किया प्रोग्राम। तो एक उस रिसर्च से क्या निकला कि जिन लोगों ने शुरू से प्रोग्राम सुना था उन्होंने तो उसका प्रियम्बल सुना था प्रोग्राम का कि आज हम H.G. वेल्स के नॉवल के ऊपर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, उनको पता था कि H.G. वेल्स का नॉवल है। लेकिन जिन लोगों ने प्रोग्राम का वो प्रियम्बल नहीं सुना था उनके लिए लगा कि ये तो सच में अटैक हो रहा है, न्यूज़ रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि ऐसा ऐसा अटैक, मार्स से कुछ एलियंस आ गए, उन्होंने अटैक कर दिया। फिर दूसरा देखा उन्होंने कि उन जो पॉपुलेशन है जिसने प्रोग्राम को देर से सुना था, मतलब शुरू का प्रियम्बल नहीं सुना था, वो जो लोग हैं उनमें जो लोग ने रिएक्ट किया, मतलब घबरा गए, अपनी गाड़ी में बैठ कर भागे, वो लोगों का डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था। तो सबसे पहली चीज उन्होंने पाया कि उनका एजुकेशनल लेवल लो था, मतलब वो सारे हाई स्कूल से भी नीचे की पढ़ाई ज़्यादातर लोगों ने की हुई थी। दूसरा उन्होंने पाया कि ये सारे के सारे हाईली रिलीजियस थे लोग उसके अंदर, और बहुत सारे लोग जो टीनेजर थे उसमें। तो उस रिसर्च से पहली बार ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने देखा कि मीडिया का इफेक्ट, देखिए क्या क्या चीज मीडिएट कर रही है। आपका अपना जो आप लेके आते हैं मीडिया के लिए, आपका दुनिया के बारे में क्या जानकारी है, आपकी मनस्थिति क्या है, आपको पूरी जानकारी है कि नहीं कंटेक्स्ट की, वो सब मिलकर असर पैदा करते हैं। अपने आप मीडिया कुछ नहीं करता। ये पहली बार एक सिस्टमैटिक स्टडी में ये पता चला। उसके बाद क्या हुआ कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ही कुछ लोगों ने से कहा गया कि यार मीडिया जो है इसका असर पॉलिटिक्स पे बहुत पड़ता है, इलेक्शन पे, कि अखबार किस तरीके से कवरेज करता है उससे इलेक्शन का जीत और हार डिसाइड होता है। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कुछ मीडिया के स्कॉलर्स मिले और उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मीडिया का अखबार का क्या असर होता है। तो मेरा यूनिवर्सिटी जहाँ पर है उस एरिया को इयरी काउंटी कहते हैं, वहाँ इयरी काउंटी में ही ये स्टडी हुई थी। तो ये स्टडी के लिए ये लोग गए, एक इलेक्शन, जब वहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था उस दौरान मल्टीपल स्टेजेस में उन्होंने लोगों के सर्वे किए और उस सर्वे में यही पूछा आपके यहाँ अखबार आता है कि नहीं, आप रेडियो सुनते हैं कि नहीं, फिर उनकी जानकारी प्राप्त करी, उनका जनरल नॉलेज क्या है इलेक्शन के बारे में, और मल्टीपल फेजेस में किया और फिर वोटिंग के बाद किया। तो उसमें वो उन्होंने ये पाया कि जो अखबार है, और अखबार का ही स्टडी था, रेडियो नहीं था, तो अखबार का जो असर था इलेक्शन के ऊपर, और एक तरफ दूसरी तरफ उन्होंने कंटेंट एनालिसिस किया अखबार का। कंटेंट एनालिसिस एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है कि आपका अखबार में क्या छप रहा है, कितनी बार कितना कॉलम इंच, कितना स्टोरी छपता है, कितनी बार छपता है, किसका नाम कितना आता है, वो काउंटिंग बहुत ही क्वांटिटेटिव तरीके से किया जाता है, बाकायदा गिन कर। जैसे अगर हम आज के समय में देखें तो एक अखबार ले लें, बोले भाजपा की कितनी स्टोरी है, कांग्रेस के ऊपर कितनी स्टोरी है, राहुल गांधी का कितनी बार नाम छपा है, मोदी जी का कितनी बार नाम छपा है, या योगी जी का कितनी बार नाम छपा है। तो सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि माना ये जाएगा कि जो अखबार पढ़ता है उसको कम से कम नाम तो देखेगा। तो ये सिस्टमैटिक कंटेंट पढ़ के किसके यहाँ कौन सा अखबार आता है वो देखकर, और फिर उसके बाद उनके एटीट्यूड्स को चेक किया गया कि उनके विचार क्या थे, किसको वोट करेंगे, क्या आपको विचार है इलेक्शन के बारे में, और इवेंचुअली उन्होंने किसको वोट किया। और इस बीच में उनसे एक और प्रश्न पूछा गया कि आप इसकी चर्चा किससे करते हैं, जो अखबार में पढ़ते हैं उसकी राजनीति की चर्चा किससे करते हैं। तो इवेंचुअली जो रिजल्ट निकल के आया, ये आया कि जो अखबार पढ़ते हैं खाली उसका डायरेक्ट असर नहीं होता है, असर मीडिएट होता है किससे आप बातचीत करते हैं।
उसके बारे में। तो इसको ओपिनियन लीडर मॉडल कहते हैं। ये जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि अखबार में क्या छपा है उसका क्या मतलब आप निकालेंगे। मीडिया में कल न्यूज़पेपर में क्या छपा है या आज टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है या सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, उसका एक्चुअल असर क्या होगा आपके ऊपर, वो इस बात पे निर्भर करता है। एक तो आपका अपना डेमोग्राफिक, आपकी अपनी मनस्थिति है। दूसरा ये है कि आप उसके बारे में बाकी लोगों से क्या चर्चा करते हैं, और उसमें उन लोगों से चर्चा जिनका की ओपिनियन आप रिस्पेक्ट करते हैं, जो ओपिनियन लीडर होते हैं आपके कम्युनिटी में। तो ये इसको कहते हैं नॉर्मली हम सोशल साइंस में इस पहले वाले को कहते हैं वन स्टेप मॉडल, दैट इज मीडिया एंड ऑडियंस। और इन्होंने येरी काउंटी के स्टेट्स को पर्सनल इन्फ्लुएंस मॉडल कहते हैं। ये स्टडी जो है इसने बताया कि मीडिया, पब्लिक ओपिनियन लीडर एंड इन्फ्लुएंस। वो पब्लिक ओपिनियन लीडर आपके घर में हो सकता है, कोई ललन टॉप हो सकता है आपके घर में, ललन मियाँ हो सकते हैं, कोई हर चीज आप उनसे पूछते हैं जाके कि भैया ये हो गया, राहुल के बारे में आपका क्या विचार है, मोदी जी के बारे में कल वो योगी जी ने ऐसा बोला, इसके बाद होता है ना, हर समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति होता है, उससे बातचीत होती है। घर में भी ऐसा व्यक्ति होता है जिससे बातचीत होती है। तो वो जो बातचीत है उसका आप इमेजिन नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो सटल इम्पैक्ट होता है वो इंटरप्रिटेशन पे पड़ता है कि कैसे आप समाज को, न्यूज़ को इंटरप्रेट करेंगे। दूसरा क्या है कि अखबार में क्या, जब वो जो कंटेंट एनालिसिस किया था उन्होंने कि क्या क्या छपता है किस अखबार में, तो उन्होंने नोटिस किया कुछ अखबार में ये समाचार छप रहा है, कुछ में ये छप रहा है, कुछ में ये छप रहा है। तो उससे उनको ये समझ में आया कि ये आप उसके बाद उसको कहते हैं कि अखबार में क्या छप रहा है। रोज समाचार तो बहुत होते हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में रोज, तो क्या छप रहा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो अखबार है वो क्या डिसाइड करता है छापना। गेट कीपर कहते हैं उसको। तो उसी से गेट कीपिंग मॉडल है, ये गेट कीपिंग शब्द का इजाद हुआ कि एडिटर्स आर गेट कीपर्स। रोज जो न्यूज़ एडिटर है किसी अखबार का या किसी टेलीविजन का, उसके पास तो रोज बहुत सारे समाचार आ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ तो छाप नहीं सकता है, तो वो सेलेक्ट करता है। तो वो सेलेक्ट कैसे करता है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उसके अंदर क्या है कि सब्जेक्टिव जजमेंट्स इन्वॉल्व है, उसके अंदर उसके अपने विचार इन्वॉल्व है कि वो कैसे सेलेक्ट करेगा। लेकिन जो उसके अपने विचार हैं वो उसकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनलाइजेशन से डेवलप हुए हैं। तो अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड है जर्नलिस्ट का, तो वो प्रोफेशनली डिसाइड करेगा, और अगर वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है तो वो अपने प्रेजुडिस, अपने स्टीरियोटाइप्स जो होंगे उसके बेसिस पर डिसाइड करेगा, या अपने नॉर्म्स और वैल्यूज के बेसिस पर डिसाइड करेगा। तो ये इसको कई बार क्या कहते हैं ना, हम कहते हैं कि मीडिया इज बायस्ड। मीडिया टेक्निकली बायस्ड जो होता है वो तो इंटेंशनल शब्द होता है। इंटेंशनल का मतलब होता है कि आप जानबूझ के कोई चीज कर रहे हैं, उसको बायस कहते हैं। लेकिन ज्यादातर सिलेक्शन जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर पैदा होता है। उसमें सब्जेक्टिव बायस एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। तो ये जो मीडिया का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर, ये मीडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन, इसको हम कई बार क्या कहते हैं कि इट्स डिस्टॉर्शंस जो होते हैं, रियलिटी से जो डिस्टॉर्शन है उसके कई प्रकार हो सकते हैं मीडिया कंटेंट के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेस, न्यूज समाचार वही है जो सोर्स का है, क्योंकि सारे सोर्स मिलकर इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं कि क्या हुआ। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस, अगर हम किसी एज अ मीडिया इफेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं, किसी लोकल चैनल का इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं, किसी अखबार का इफेक्ट या किसी यूट्यूब चैनल का इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो सब एक हाइपोथेसिस हम ये बना सकते हैं। और हाइपोथेसिस आप लोगों को पता है क्या है? हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? एक हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हम एक पढ़ा लिखा अनुमान करना है कि ऐसा होने के चांसेस है, और फिर उसको आप टेस्ट करते हैं कि क्या ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो एक हाइपोथेसिस हम ये बना सकते हैं कि मीडिया जो कंटेंट जो है वो इंडेक्स्ड है सोर्सेज से, जो उसके सोर्सेज होंगे उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या है भैया। अब इसके बारे में अगर मैं आपको कहूं कि आप इसके विचार करें, और जितने आप चैनल देखते हैं या वो या
अखबार पढ़ते हैं या यूट्यूब का चैनल देखते हैं, उस विचार से इसको सोचें कि मीडिया कंटेंट इज इंडेक्स टू सोर्सेस। क्या सही है? प्रीलिमिनरी आपके अपने एक्सपीरियंस में। अब ये जितने चैनल हैं अलग अलग, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हर चैनल के एक पर्टिकुलर स्वरूप है सोर्सेस का। एक प्रकार के सोर्स ज़्यादा होते हैं एक किसी पर्टिकुलर चैनल में या फिर किसी पर्टिकुलर अखबार में। अब मान लीजिए कि मैं इंटरनेट के ऊपर हिंदू अखबार पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है, साउथ इंडिया से छपता है चेन्नई से, और यहाँ दिल्ली में भी एडिशन है, सिटी एडिशन इनका। तो हिंदू अखबार के अंदर मैं सोर्सेस चेक करना शुरू कर दूँ कि कौन सोर्स कोट होता है उसके अखबार के अंदर, और फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स उठा लेता हूँ और उसके सोर्सेस चेक करता हूँ कि उसमें कौन लोग कोट होते हैं। आप देखेंगे एक सिस्टमैटिक पैटर्न है सोर्सेस का कि कौन लोग वहाँ कोट होते हैं, कौन लोग यहाँ होते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है कि न्यूज़पेपर लेजिटिमाइजेज सर्टेन सोर्सेस ओवर अदर्स, हु इज वर्दी ऑफ बीइंग हर्ड एंड हु इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग हर्ड। और जो न्यूट्रल, जो बिल्कुल, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा अखबार न्यूट्रल है, या कोई भी 100% न्यूट्रल तो कोई भी नहीं होता है, 100% ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि क्या मीडिया न्यूट्रल है, उसको इसी बात से चेक कर सकते हैं आप कि उसके सोर्सेस चेक कीजिए कि उसके सोर्सेस कितने वाइड स्प्रेड हैं। अगर वो एक ही प्रकार के सोर्सेस को साइट करता है तो वो चाहे कुछ भी कह रहा हो, चाहे वो तथ्य भी कह रहा हो, वो इंटरप्रिटेशन तो बायस रहेगा ही, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सोर्स या उस पर्टिकुलर समाज या उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के ही विचार उसके अंदर आपको दिखेंगे। तो जैसे कई बार कहा जाता है कि 2012-13 के बाद स्पेशली सडनली समाज अखबारों में और न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न में आप वैरायटी ऑफ सोर्सेज दिखने लग गए। उससे पहले एक सर्टेन टाइप के ही सोर्स दिखते थे मीडिया के अंदर। तो सोर्स इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है कि उस हाइपोथेसिस ये कि कंटेंट क्या छप रहा है, इस बात पे निर्भर करता है कि सोर्स क्या है इसके अंदर। दूसरा हाइपोथेसिस हम इस बात से बना सकते हैं इसमें कि मीडिया के अंदर क्या छपता है वो इंडेक्स्ड है ऑफिशियल सोर्सेस से। तो एक तो जनरल सोर्स हो गया, आम आदमी, आम एक्सपर्ट, एक्टिविस्ट, एकेडमिक, यूनियन का नेता, स्टूडेंट लीडर, आम समाज का नेता, सब लोग हो गए, आम लोग हो गए। एक होता है ऑफिशियल सोर्सेस। तो न्यूज़पेपर मीडिया कंटेंट जो है वो क्या ओवरली इंडेक्स्ड है ऑफिशियल सोर्सेस के थ्रू। तो उसको अगर आप जब हम कहते हैं ना कि ये चैनल सरकारी चैनल है, तो उसका क्या मतलब होता है, या ये सरकारी मीडिया है। ये इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि उसके अंदर सरकार से जुड़ी हुई समाचार छपते हैं, क्योंकि सरकार से जुड़ी हुई समाचार तो छपने ही चाहिए, नहीं तो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। तो बात ये नहीं कि सरकार से जुड़े समाचार छपते हैं, उसके अंदर जो सोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करते हैं उसको समझने के लिए कि जो सरकार के कार्य हैं उसको समझने के लिए, वो सोर्स कौन है। जब वो सारे सोर्स ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी वर्ग हो गया, नेता हो गया, मंत्री हो गया, अगर वो होते हैं तब वो चैनल सरकारी हो जाता है, क्योंकि वो एक ही प्रकार का रूप बता रहा है ना, जो भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में वो एक ही तरीके से आपको बता रहा है। तो समाचार क्या, मीडिया इज इंडेक्स टू ऑफिशियल सोर्सेस। तीसरा एक और है सोर्सेस में, वो है क्या मीडिया के अंदर जो कंटेंट है इंडेक्स टू पीआर। तो बहुत सारी पीआर एजेंसीज होती हैं और हर पीआर एजेंसी प्रेस रिलीज करती है। सुबह सुबह न्यूज़ एडिटर के दफ्तर में सैकड़ों प्रेस रिलीज आती है, बड़ा अखबार हो तो और भी ज़्यादा आती है। उनका काम है पब्लिक रिलेशंस वालों का, उनको जानकारी पहुंचानी हमारे कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, कंपनी हमारा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, तो प्रेस रिलीज भेजते हैं। अब किसी भी अखबार में दो ऑप्शन होता है अखबार के पास, या तो प्रेस रिलीज ले उसको रीराइट करके छाप दे, तो वो तो हो गया एंटायरली इंडेक्स टू पीआर। या वो कहे कि भैया ये प्रेस रिलीज आया है, अपने रिपोर्टर को थमा दे और बोले कि भाई इसके बारे में छानबीन करो और एक कहानी बनाओ, बताओ क्या हो रहा है। तो आपको
किसी भी अखबार में कितना समाचार, मतलब टोटल जितना रोज न्यूज़ स्टोरी छपती है उसका कितना बड़ा हिस्सा पीआर से इंडेक्स्ड होता है, मतलब इंटायरली डेवलप्ड बाय पीआर, कितना परसेंटेज आपको, जस्ट टेक अ गैस, कोई भी 40, 42, दैट्स वेरी प्रिसाइज। तो इससे और कोई नंबर? एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में, या हिंदुस्तान टाइम्स या अंग्रेजी के जितने अखबार हैं, इनमें पीआर से जुड़ी हुई समाचार जो हैं, पीआर मतलब प्रेस रिलीज से जनरेटेड समाचार बिना रिपोर्टर का कोई इनपुट के, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, प्रेस रिलीज आया, आपने उसको रीराइट करके छाप दिया, इट इज मोर देन 60%, और वो बढ़ता जा रहा है। अब वो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अखबार में रिपोर्टर्स को हायर करना नहीं चाह रहे हैं, सस्ता प्रोडक्शन को, कॉस्ट को लोअर करने के लिए वो पब्लिक रिलेशंस, प्रेस रिलीज को अखबार समाचार में कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि उसके अगर आप हिंदी अखबारों को लेंगे तो उसमें अभी उतनी बड़ी तादाद नहीं हुई है। अभी 30 से 40% समाचार जो है हिंदी अखबारों में वो प्रेस रिलीज से जनरेट होती है। उसकी वजह ये भी मानी जा सकती है कि हिंदी अखबार का पत्रकार थोड़ा सस्ता है रिलेटिव टू, और उसकी तनख्वाह कम है रिलेटिव टू अंग्रेजी अखबार के, तो अखबारों का कॉस्ट भी, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी लेस है उस हिसाब से। तो ये पीआर एजेंसी से इंडेक्स हो सकती है कहानी। तीसरा है कि ये सेलिब्रिटीज के साथ भी बहुत सारी न्यूज़ कनेक्टेड होती है। अब आज अगर आप रोज देखें अखबार खोल के तो कितनी सारी न्यूज़ स्टोरी सेलिब्रिटीज़ के बारे में होता है, कोई क्रिकेटर है, कोई स्टार, फिल्म स्टार है, कोई टेलीविज़न, तो उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं जिसका आपके जीवन पे डायरेक्ट कोई असर नहीं होता है, लेकिन इसीलिए उसको हम, एक नया टर्म इवॉल्व हुआ था, इंफोटेनमेंट, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन है लेकिन एंटरटेनमेंट भी है। और एक और हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं इसमें कि जो समाचार है, मीडिया इज इंडेक्स टू एक्टिविस्ट्स। जो एक्टिविस्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर, उस मीडिया का कंटेंट उनसे इंडेक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो जिद्दोजहद करते हैं कि भाई आप इसको छापिए, इस बारे में छानबीन कीजिए, तो एक्टिविस्ट का एक रोल होता है मीडिया के कंटेंट में। अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है छठा, मीडिया इज रेयरली इंडेक्स टू कॉमन पर्सन। आम आदमी से जुड़ा हुआ न्यूज़ का इंडेक्सिंग बहुत ही कम होता है। अब आइडियली तो हम सोचेंगे कि ये ज़्यादा होना चाहिए आम आदमी से। आम आदमी सोर्सेज नहीं होते न्यूज़ स्टोरी के अंदर, ठीक है। उनके अगर कुछ हो गया, मान लीजिए कहीं पानी की किल्लत है किसी एरिया में, या बिजली या सड़क की किल्लत है, तो ऐसा कम ही होगा कि पत्रकार कहेगा मैं जाके वहाँ के लोगों से बातचीत करूँ। वो किसी अधिकारी को कोट करके या किसी नेता को कोट करके कहानी बना देगा। ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। तो वेरी रेयरली इंडेक्स टू ऑर्डिनरी पर्सन। एक दूसरा क्लेम हम बना सकते हैं कि न्यूज़ जो है वो डिटैच्ड है, जिसको कहते हैं कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो तो डिटैच्ड रूप से न्यूज़ छापता है। लेकिन एक मेरे शोध में मैंने ये पाया है कि न्यूज़ इज नॉट ओनली डिटैच्ड, न्यूज़ इज आयरॉनिक। आयरॉनिक का हिंदी में क्या? देखिए मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है कि देखिए मेरे को शब्द नहीं पता है आयरॉनिक का। किसी को पता है आयरनी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, व्यंग्यात्मक, व्यंग। अब आप पूछेंगे कि अखबार में, मीडिया में या न्यूज़ में या व्यंग कैसे है कंटेंट? कौन ऐसा पत्रकार है इस समय इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आयरॉनिक जर्नलिज्म प्रैक्टिस करता है? प्रोफेशनल पत्रकार, जिसने बहुत साल प्रोफेशनल पत्रकारिता करी हो, और हम उसकी पत्रकारिता को आयरॉनिक कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक कह सकते हैं। कोई नाम आता है आपको? कोई ऐसा पत्रकार? हाँ, रवीश कुमार इज प्रैक्टिशनर ऑफ आयरॉनिक जर्नलिज्म।
व्यंग्यात्मक पत्रकारिता करते हैं। व्यंग्यात्मक पत्रकारिता की एक खासियत होती है कि मूल्यों पे आधारित होती है, तथ्यों पे नहीं। मूल्य, जो आपको मूल्य आपके हैं, उन मूल्यों को आप बहुत मानते हैं, वो मूल्य आप सोचते हैं कि समाज के लिए बढ़िया है, तो मूल्य ड्राइव करते हैं आपकी व्यंग को। जितना व्यंग का जो सोर्स होता है वो मूल्य होता है, आपके क्या वैल्यूज हैं। उसके लिए फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स तो एनीवे आयरॉनिक है, उनको ट्रू होने की जरूरत ही नहीं है। फैक्ट्स को फैक्चुअल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आजकल की पत्रकारिता में इसका ग्रोथ बहुत हो रहा है, मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता, और वो भी आयरॉनिक, व्यंग्यात्मक। उसमें सबसे बेहतर प्रैक्टिशनर रवीश कुमार है उस पत्रकारिता के, और आज से नहीं है, एनडीटीवी के समय से ही है, पहले से। दूसरा क्या है कि समाचार जो है, जिसको हम समाचार कहते हैं, वो बहुत कम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है टेक्निकली डिटेल ओरिएंटेड न्यूज़, और वो एक समस्या क्यों आ गई है। डिटेल ओरिएंटेड न्यूज़ बहुत कम होता है। जब हम लोग कॉलेज में थे या हम लोग स्कूल में थे, तो कोई एक न्यूज़ स्टोरी, आम अखबार के अंदर 1000 वर्ड की न्यूज़ स्टोरी पढ़ना बहुत ऑर्डिनरी सी बात थी। 1000 वर्ड की 2 कॉलम में छप रही है स्टोरी, 3 कॉलम में छप रही, बहुत ऑर्डिनरी सी बात है। आजकल एवरेज न्यूज़ स्टोरी जो है वो 350 से 500 वर्ड की है। अब 350 से 500 वर्ड की स्टोरी या 2.5 मिनट का क्लिप, 2.5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है वीडियो में, आप मान लीजिए 40 सेकंड 50 सेकंड का क्लिप हो न्यूज़ में, उसमें आप कितना डिटेल प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं। तो होता क्या है कि हम दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कंटेंट के ऊपर, कि जो कंटेंट है वो प्रोसेस और टेक्निकली डिटेल ओरिएंटेड होने के बजाय स्ट्रेटेजिक और आउटकम ओरिएंटेड है। और उस आउटकम ओरिएंटेड में पॉलिटिक्स में जो चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में क्या है, ये पॉलिसी के डिटेल के बारे में बहुत कम होता है। वो ये होता है कि इस गेम ऑफ पॉलिटिक्स में कौन आगे और कौन पीछे है। अगर आप कल का अखबार उठा लें, पार्लियामेंट में क्या बहस हुई, और बहस तो नहीं हो पाती है क्योंकि पार्लियामेंट तो हर समय रद्द हो जाता है हर रोज, लेकिन जो विषय है, जिस विषय पे रद्द हो गया है, उसके डिटेल्स के बारे में कम चर्चा होती है। ये चर्चा होती है कि भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया आज, या कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया। तो हु इज विनिंग, हु इज लूजिंग, हु इज अप, हु इज डाउन, क्योंकि 500 वर्ड में वही कर सकते हैं। आपके पास समय, आप अब 30-40 सेकंड में और क्या बताइएगा। तो ये एक हॉर्स रेस हो गया है, घोड़दौड़ हो गई, रोज कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे। तो ये एक आज के, अब ये जो मीडिया 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी से आज हम डिजिटल मीडिया के ज़माने में आए हैं, ये लंबा जो रास्ता तय किया है, इस रास्ते में इसका स्वरूप बदला है। और इस स्वरूप को बदलने में हमारा अटेंशन स्पैन, हम कितना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें का रोल है। और दूसरा, वाइड एरे ऑफ सोर्सेस। मेरे एक स्टूडेंट हैं, मैंने एक बार कहा कि आप लोग कुछ पढ़ते नहीं। मेरे स्टूडेंट, मैंने कहा कि तुम लोग, हम लोग तो 2 घंटा अखबार पढ़ते हैं। तो मेरे स्टूडेंट ने कहा 2 ही घंटा पढ़ते थे खाली। तो मुझे वही लगा कि भाई क्यों पूछ रहे हैं 2 घंटा। तो 2 घंटे सवेरे उठे, 2 घंटा चाय होती है, 2 घंटे तक अखबार पढ़ा, तैयार हुए, कॉलेज चले गए, या फिर काम नौकरी थी तो नौकरी चले गए। उसको लगा, स्टूडेंट ने कहा नहीं तो कुछ भी नहीं है 2 घंटा। तो मैंने कहा तुमको क्या मतलब, तुम कितने देर पढ़ते हो? कहते हम तो पढ़ते ही रहते हैं सारा दिन। मैंने कहा सारा दिन कैसे पढ़ते रहते हो? तो कहते हैं देखिए हम सारा दिन फोन पे पढ़ते ही रहते हैं, कंटिन्यूस पढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, बूंद 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 करके पढ़ते हैं। इवेंचुअली शाम तक तो हम कम से कम 4-5 घंटा पढ़ जाते हैं। ये पर्सपेक्टिव मुझे आई वुडंट हैव नेवर रियलाइज्ड इट, बट माय स्टूडेंट टोल्ड मी कि हम पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी कि जब उनको मैं कोई असाइनमेंट लिखने को देता हूँ, और असाइनमेंट अगर 500 और 1000 वर्ड का हो जाए और 2000 का वर्ड का हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो जो छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं वो बहुत बढ़िया लिखते हैं। दे राइट इन चंक्स, इन स्मॉल चंक्स, क्योंकि वो पढ़ते भी स्मॉल चंक्स में ही है। सारा दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन बहुत स्मॉल चंक्स में पढ़ते हैं।
कोई भी आर्गुमेंट को होल्ड करना 1000 वर्ड तक, दैट दे आर नॉट इनटू यूज्ड टू। तो अब ऐसे में ब्रोकन फॉर्म में, पार्ट्स एंड पीसेस में, या ट्विटर में, जैसे ट्विटर जिसको आज एक्स कहते हैं, आप स्टोरी एक कितना 280 कैरेक्टर का है जो भी है इस समय, अगर आपको लंबी स्टोरी लिखनी पड़े तो आपको तो मल्टीपल पोस्ट बनाने पड़ेंगे, वो चंक में राइटिंग करनी पड़ेगी। आजकल डॉक्टर थ्रिवेदी हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये भी सिखाते हैं कि कैसे चंक्स के थ्रू नैरेटिव क्रिएट करना, स्मॉल क्लिप्स। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो है वो स्मॉल चंक्स में और क्लिप्स में पढ़ रहा है। अब रील आ गई, जैसे मान लीजिए क्लिप्स है, रील है। हाउ एज टुडे इन आवर डिपार्टमेंट्स ऑफ मीडिया, हाउ वी कैन टीच स्टूडेंट्स टू बिल्ड नैरेटिव्स यूजिंग स्मॉल क्लिप्स। ऐसा ना, सिस्टम के साथ लड़ने के बजाय सिस्टम को अपने पर्पस के लिए अडेप्ट करने की जरूरत होती है। मीडिया तो चलता रहेगा ना, हमारे और आपके कहने से बदल तो जाएगा नहीं। नई आज रील आई है, कल कोई और टेक्नोलॉजी आएगी। टेक्नोलॉजी इज अ डिसरप्टर, इट विल कंटिन्यूअसली कीप डिसरप्टिंग। इट इज फॉर अस टू एंश्योर दैट हाउ डू वी सर्व द पर्पस ऑफ जर्नलिज्म इन सोसाइटी। तो हाउ डू वी अडेप्ट टू इट? And why we are interested again? Because our primary goal is to understand media effect. क्योंकि मीडिया का समाज के ऊपर असर होता है, तो वो समाज का कंटेंट के टाइप से असर होता है, कौन कंज्यूम करता है उस पर असर होता है। तो इसलिए दूसरा क्या है कि अब मैं थोड़ा सा वापस अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आना चाहूँगा और फिर विल क्लोज एंड देन मे बी डू अ Q&A। सो सोशल साइंटिस्ट, मैंने कहा कि दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन बायस, क्योंकि बायस इंटेंशनल होता है। किसका इंटेंशन कौन जानता है? सो व्हाट सोशल साइंटिस्ट व्हेन दे स्टडी मीडिया, दे आर नॉट रियली, दो एनी रिसर्चर हु सेज आई एम स्टडीइंग बायस इज अ मिसनोमर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यू कैन नॉट स्टडी बायस, बिकॉज बायस इज अ वेरी इंटेंशनल एक्ट। कोई आप किसी के दिमाग में घुस कर नहीं बता सकते हैं कि वो बायस्ड है कि नहीं। व्हाट यू कैन स्टडी इज डिस्टॉर्शंस, and these distortions happen, जो मैंने कहा कि a news is socially constructed, and how it gets constructed, distortions emerge from that construction. Sources, आपके sources widespread है कि नहीं, क्या आपके sources सारे official हैं तो distort हो गया news will only present a official version। अगर आपके sources society के एक ही वर्ग के हैं तो उसी वर्ग के perspective आपके story में आ गया, वो distortion आ गया। ठीक है, तो it is the process of creating news or media content, and in that process how you construct that reality determines the distortion, and there is no perfect representation of reality. Everybody engages in some distortion will happen, क्योंकि reality यहाँ है और image construction यहाँ है, वो उसके बीच में noise है। जब वो noise से गुजरेगा तो noise से distortion तो पैदा होगा सिग्नल के अंदर कुछ ना कुछ, तो eventually you will have slight distortion. Question है कि how do you lower the distortion? How do you minimize the distortion? You have wide array of sources, सबसे important चीज जो है उसके अंदर you try to explain context rather than just who is up, who is down, who is winning, who is losing. तो इस क्षेत्र में 3 थियरीज अर्ली मीडिया रिसर्च से डेवलप हुई थी, और इसका इम्पैक्ट हम इवेंचुअली न्यू लेगेसी मीडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। लेगेसी मीडिया में क्या ये रिसर्च हुआ था और न्यू मीडिया में क्या है। एक कहते हैं एजेंडा सेटिंग थियरी, दूसरे को कहते हैं एजेंडा बिल्डिंग, और तीसरे को कहते हैं फ्रेमिंग। ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, एजेंडा सेटिंग, एजेंडा बिल्डिंग एंड एजेंडा फ्रेमिंग, ये डिस्टॉर्शन न्यूज़ या मीडिया प्रोडक्शन के दौरान जनरेट होते हैं उसके प्रोसेसेस से। एजेंडा सेटिंग जो है वो गेट कीपिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एडिटर्स आज के दिन उसके पास तो 30 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन है। अब दुनिया में होता तो बहुत कुछ है, रोज सब कुछ तो दिखा नहीं सकता है, तो वो सेलेक्ट करता है कि 30 मिनट में मैं क्या क्या दिखाऊंगा, तो वो गेट कीपिंग कर रहा है। वो उसके बाद समाचार आ रहा है, उसका एक इमेज आप मान लीजिए कि एक गेट पर एक खड़ा है गार्ड, वो गेट खोलता है, बंद करता है। जिसके लिए बंद कर देता है वो समाचार साइड में ट्रैश में चला जाता है, जिसके लिए खोलता है वो आगे बढ़ जाता है। तो वो गेट कीपिंग से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो दूसरे दिन का एजेंडा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, क्या छापेगा, उससे एजेंडा सेट हो रहा है। लेकिन प्रोसेस जो है एजेंडा सेट होने का वो इतना आसान नहीं है। एक्चुअली वो एजेंडा बिल्डिंग का प्रोसेस है।
उसमें और लोगों की भी भागीदारी है, एडिटर अकेले नहीं है, और भी लोग हैं उसके अंदर इन्वॉल्व कि कैसे एजेंडा। और तीसरा है जो फ्रेमिंग है। फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी नैरेटिव, कोई भी स्टोरी अगर आप कहना चाहते हैं तो उसको फ्रेम करना पड़ता है। अगर आप फ्रेम नहीं करेंगे तो इट विल बी chaotic एंड haphazard। जैसे कहते हैं ना कि जो आप राइटिंग की क्लासेस आपने ली होंगी तो आपने देखा होगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्ट्रक्शन यू गेट ऑल द टाइम, हाउ टू राइट इन अ लीनियर फॉर्मेट, मतलब सीक्वेंशियली कैसे लिखना है, ठीक है। कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। जो चीज़ पहले आएगी वो पढ़ने वाले के ऊपर उसका प्रभाव अलग होगा और वो फ्रेम कर देगी स्टोरी। अब आप न्यूज़ स्टोरी को अगर आप देखें, कोई भी न्यूज़ स्टोरी हेडलाइन अगर कोई भी अखबार का निकाल लें तो न्यूज़ स्टोरी में जो बड़ा हेडलाइन होता है, जो हेडलाइन होता है वो सबसे बड़ा फ्रेम है। उसको पढ़ते ही आपको आपका एक तरीके से डायरेक्शन दे दिया जाता है कि इस तरीके से इस कहानी के बारे में सोचिए। इसीलिए उसका कंट्रोल किसके पास होता है? एडिटर के पास होता है, कॉपी एडिटर्स के पास, सब एडिटर हमारे यहाँ कहते हैं। वो हेडलाइन लिखता है। वो जब हेडलाइन लिखता है तो वो बता देता है कि कहानी को किस नज़रिए से आपको देखना है। कहानी में तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, इस नज़रिए से देखिए। तो उसको कहते हैं फ्रेम करना कहानी। उसके बाद जो हेडलाइन होता है वो सेकंड काम करता है। हेडलाइन जो लीड होता है, पहला पैराग्राफ, वो कहानी को सेट करता है और उस पहले पैराग्राफ के बाद का जो पैराग्राफ होता है वो एंकर होता है, वो कहानी को सेट कर फिक्स कर देता है। इसी नज़रिए से इसको देखिए। और क्योंकि उसको फेयर होना है सब साइड के लिए तो बाकियों की भी बातें होंगी लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा, भटकिएगा मत। ये नज़रिया है देखने का। तो ये जो एडिटर का रोल होता है ना, फ्रेम करने का स्टोरी। रिपोर्टर भी फ्रेम करता है लेकिन रिपोर्टर का फ्रेम तो फिर एडिटर चेंज कर देता है, या कई बार मान लेता है या कई बार उसको एडिट कर देगा, उसको बदल देगा रिपोर्टर के फ्रेम को, वो अपने एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से। अगर हम नेशनल हेराल्ड अखबार को रोज पढ़ना शुरू कर दें और इसी तरीके से हम कोई भाजपा से जुड़ा हुआ, मुझे नहीं मालूम कौन नेशनल हेराल्ड के इक्विवेलेंट कौन सा अखबार है भाजपा का अंग्रेजी में, मैं तो कुछ तो अखबार होंगे जो बिल्कुल ही भाजपा वाले भगवाधारी होंगे। नेशनल हेराल्ड में तो राहुल जी से ज़्यादा विद्वान और उनसे ज़्यादा संत व्यक्ति नहीं है कोई, अगर नेशनल हेराल्ड अप्रोच करें तो ठीक है। तो वो उसका एडिटर का काम है, वो फ्रेम कर रहा है उसको रोज। इसी तरीके से भगवा का भी कोई अखबार होगा जिसमें कि मोदी जी से बड़ा तो कोई संत नहीं है दुनिया में। तो ये फ्रेमिंग का पर्सपेक्टिव, वो एडिटोरियल पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, केवल नहीं कि हमारी अखबार की क्या पॉलिसी है, वो फ्रेमिंग के ऊपर असर करती है कि कैसे कहानी फ्रेम होगी। वो टेलीविजन में भी इसी तरीके से असर करती है। अगर हम अर्नब गोस्वामी को रोज रिपब्लिक पर देख रहे हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि उसका फ्रेमिंग का स्टाइल क्या है, कैसे फ्रेमिंग करना है। तो अर्ली रिसर्च, जो बहुत सारा रिसर्च जो है वो इसी बात को स्टडी करता है, जो मैं और बहुत सारे लोग जो मीडिया इफेक्ट पढ़ते हैं, वो एजेंडा सेटिंग, एजेंडा बिल्डिंग और फ्रेमिंग कैसे हो रही है। अब देखिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो रहा है मामला, इतना आसान नहीं है कि ये मीडिया बायस है, इस मीडिया में ये नहीं है, इस तरीके से नहीं स्टडी होती। अगर आप इसको इस तरीके से समझिएगा तो आप अच्छा पत्रकार बनिएगा, क्योंकि आपको समझ में रहेगा कि इसका इट्स नॉट दैट सिंपल। ऐसा नहीं है कि आप एक्यूज कर दें किसी को कि ये बायस जर्नलिस्ट है, ये इसके प्रोसेस है, इस प्रोसेस से चेंज आता है। और अच्छा पत्रकार भी उस प्रोसेस को इम्प्रूव करके ही बन सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम एजेंडा सेटिंग बंद कर सकते हैं, क्योंकि रोज सब कुछ तो छाप नहीं सकते। 30 मिनट में सारा दुनिया की खबर तो नहीं बता सकते। हाँ, आजकल बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मैं इंडिया में जब भी आता हूँ वो 100 स्टोरीज का एक सीक्वेंस चलता है, खट बताते हैं। तो लेकिन फिर भी स्टोरीज तो 1000 भी हो सकती हैं, 100 ही क्यों। तो दूसरा क्या चीज़ नोटिस करना होता है, जब ये स्टोरीज इस तरीके से सेट हो रही होती हैं तो उसमें एडिटोरियल प्रोसेस में स्टोरी इवेंट सेंटर्ड है, एक्शन सेंटर्ड है या पर्सन सेंटर्ड है। मतलब कि उसका जो फ्रेमिंग किया गया है वो इवेंट से किया गया है, उसके एक्शन से किया गया है, या उसमें पर्सन से किया गया है। पॉलिटिक्स की स्टोरीज ज़्यादातर पर्सन सेंटर्ड होती है, सेलिब्रिटी, टेलीविजन, इनकी इंफोटेनमेंट की स्टोरीज पर्सन सेंटर्ड होती है। आम जनता के एक्सीडेंट की स्टोरी हमेशा एक्शन सेंटर्ड होती है। हुआ क्या, किस ट्रक ने मारा या कार ने मारा या साइकिल ने, क्या हुआ। दूसरी एक और चीज़ ये है कि ये शुरू से चला आ रहा है कि न्यूज़ तो नेगेटिव ही होती है, न्यूज़ पॉजिटिव नहीं है। ये कई पत्रकारों का मानना है, ये बहुत इस्टेब्लिश्ड व्यू है पत्रकारों के बीच में कि न्यूज़ नेगेटिव होती है। ये हेनरी लूस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हेनरी लूस टाइम मैगजीन के एडिटर होते थे, फाउंडर एडिटर थे। तो
उस समय प्रेसिडेंट ट्रूमन उनसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं 1945, 46, 47 के समय कि टाइम में बहुत नेगेटिव स्टोरीज छप रही हैं हम अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उनको बुलाया जाता है, उनके एडिटर को प्रेसिडेंट के यहाँ, उनको पूछा जाता है कि भाई क्या है आपके यहाँ सारी स्टोरीज नेगेटिव छपती हैं। तो कहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, गुड न्यूज़ इजंट न्यूज़, बैड न्यूज़ इज न्यूज़। कहते हैं नेगेटिव न्यूज़ ही न्यूज़ होती है, बाकी गुड न्यूज़ नहीं होती है। तो ऐसे विचार के भी लोग पत्रकारिता में, ये डोमिनेंट व्यू है पत्रकारिता के अंदर। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं, गुड न्यूज़ कैन ऑल्सो बी न्यूज़। बट लेकिन मोस्ट प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ये भी मानते हो, जब हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये देखना होता है कि कहीं हम जो नेगेटिव न्यूज़ कर रहे हैं वो सिनिकल न्यूज़ तो नहीं है, नकारात्मक, बिल्कुल खाली नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं, टोटली नकारात्मकता। तो आप ये देख सकते हैं, आप जो मीडिया कंज्यूम करते हैं आप लोग, अब देखेंगे कि कुछ मीडिया जो है वो नकारात्मक मीडिया है और कुछ एडवर्सरियल है, क्रिटिसिज्म का मीडिया है। वो तो ठीक है, लेकिन जो नकारात्मक है, नकारात्मकता और बीइंग नेगेटिव एंड बीइंग क्रिटिकल में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये एक मॉडल है, ये मॉडल मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स 2 स्लाइड और दिखाता हूँ आपको और फिर हम Q&A करेंगे। तो एजेंडा सेटिंग का ये शोफल का मॉडल है। वो कहता है कि मीडिया में एजेंडा कैसे सेट हो रहा है, ठीक है। तो एलिट्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है एजेंडा सेट करने में। मीडिया का अपना एजेंडा होता है जो उसके एडिटोरियल पॉलिसी से डिटरमिन होता है, और ऑडियंस का अपना एजेंडा होता है जो सिलेक्ट करता है कि मैं क्या पढ़ूंगा, क्या देखूंगा, क्या नहीं देखूंगा। तो ये सब मिलकर इवेंचुअली एजेंडा बिल्ड करते हैं। अगर मीडिया कोई चीज दिखाए और कोई उसको देखे ना, तो उससे तो एजेंडा नहीं बन जाएगा। तो इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ ऑल दीज पीपल, न्यूज मेकर्स, मीडिया एंड ऑडियंस, ये सब मिलकर एजेंडा बिल्ड करते हैं। अब वो जो ऑडियंस है उसका रोल क्या है? उसका रोल प्राइमरली एक तो पढ़ना, देखना, अगर वो कंज्यूम करता है न्यूज, लेकिन उसके बाद उस न्यूज की चर्चा करता है। अगर उस न्यूज की वो चर्चा करे लोगों से, तो हम उसको मानेंगे कि एजेंडा बिल्ड हो रहा है। इसको हम फ्रेमिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। फ्रेमिंग बिल्ड कैसे होता है प्रोसेस में, अगर उसको भी देखें आप, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये सबके फ्रेम आ रहे हैं। जो सोर्सेज हैं वो अपना फ्रेम इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप, एलिट्स जिनको इंटरव्यू किया जाता है, जर्नलिस्ट इंटरव्यू करता है, वो देते हैं सोर्स। मीडिया के एडिटर्स का अपना फ्रेम होता है, मीडिया के प्रोड्यूसर्स का, जर्नलिस्ट का। ऑडियंस का अपना फ्रेम होता है, वो इम्पोज करता है फ्रेम जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर। तो इन सब से फिर फ्रेम डेवलप होता है, और वो फ्रेम से मीडिया का एक्चुअल इम्पैक्ट पता चलता है कि हाउ विल मीडिया हैव एन इम्पैक्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा। ये सारे प्रोसेस का एक कॉम्प्लेक्स प्ले आउट है। अब इसको अगर सिस्टमेटिकली स्टडी करना हो तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत सालों से इसके ऊपर स्टडी हुआ है, तो इसलिए इसका एक मॉडल लेगेसी मीडिया के लिए तो बना हुआ है, जो पुरानी मीडिया है। लेकिन जब हम ये जो न्यू मीडिया के क्षेत्र में गए हैं, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि ये जो न्यू मीडिया है, इसका फीचर बहुत डिफरेंट है। ये इंटरैक्टिव है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि इंटरैक्टिव है कि मतलब कि आप उसके चैट में जवाब भी दे सकते हैं इंस्टेंटली, ठीक है। अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो इंस्टेंटली केबल डेटा फीडबैक चला जाता है कि लोग देख रहे हैं केबल चैनल, ठीक है। तो इंटरैक्टिव प्रोसेस होने की वजह से। दूसरा क्या है कि एसिंक्रोनस है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है। उसकी वजह यह है कि आप पुराने समय चल जाए, आज का अखबार आया, कल दूसरा अखबार आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वेबसाइट जो है उस पर तो वो परमानेंट ही रहेगा ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर आप टेलीविज़न को देख रहे हैं आज, तो टेलीविज़न की जो रिकॉर्डिंग जो है, वो वीडियोज़ हैं, वो वेबसाइट पर है अवेलेबल, या यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये नहीं है कि मेरे को 6 बजे का न्यूज़ का प्रोग्राम था, मैंने मिस कर दिया तो अब दोबारा नहीं सुनने को मिलेगा। तो पहले टाइम इंडिपेंडेंट नहीं होता था मीडिया, अब टाइम इंडिपेंडेंट है। तो लोगों को ये हमको पता नहीं चलता कि कंज्यूमर ने कब कंज्यूम किया और कब कंज्यूम किया, और उस पर उस समय ऑडियंस का क्या इम्पैक्ट पड़ा आफ्टर द फैक्ट। दूसरा है कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत है आज। जो मीडिया पे यूज़र्स हैं वो भी जनरेट कर रहे हैं कंटेंट, पहले तो चैट में कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कंटिन्यूस, फिर वो लोग भी यूट्यूब के ऊपर अपने कंटेंट डाल रहे हैं। आज अगर कोई इंसिडेंट हो जाए यहाँ पर, तो बड़े बड़े चैनल तो आके रिपोर्ट करेंगे ही, लेकिन कितने यूट्यूबर्स भी आके करेंगे, और कितने लोग अपने स्मार्टफोन पे ऊपर रिकॉर्डिंग करके भी डाल देंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहाँ
तो यूजर जनरेटेड कंटेंट हो रहा है। वो लोग जो हैं वो तो प्रोफेशनल नहीं है, वो किसी सोर्सेज से भी बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, वो केवल रॉ कंटेंट आपके सामने रख दे रहे हैं। अब रॉ कंटेंट जब आपके सामने रख दिया जा रहा है तो फ्रेम नहीं है, वो उसमें कोई जो प्रोसेस, जो न्यूज़ का प्रोडक्शन का प्रोसेस से तो गुजरा नहीं है वो बिल्कुल भी, तो बिल्कुल रॉ कंटेंट है। वो इंटायरली डिपेंडेंट है ऑडियंस के परसेप्शन के ऊपर कि वो कैसे उसको परसीव करें ऑडियंस। दूसरा ये कि नेटवर्क है ये, अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया उसको, उसने भेज दिया, तो ये न्यूज़ ट्रैवल जो है वो विद इन सोशल नेटवर्क कर रही है। उससे भी असर पड़ता है किसने भेजा। अब आपको व्हाट्सएप रोज बहुत सारे आते हैं, आपको किसने व्हाट्सएप, सबके व्हाट्सएप फॉरवर्ड को तो आप नहीं देखते, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप रिलायबल मानते हैं, जिसके ग्रुप के मेंबर होते हैं, आप उसको देखते हैं। अब व्हाट्सएप का जिक्र आता है तो हर किसी के दिमाग में पीछे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी घूमती रहती है। वो मैं ना उस शब्द को सही मानता हूँ ना उसको, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं होती है। ये एक तरीके का पॉलिटिकल रेटरिक है, इसका कोई और मतलब नहीं है। क्योंकि समाचार जो व्हाट्सएप में शेयर होती है, ज़्यादातर जो शेयर होता है वो बस रॉ अनफिल्टर्ड कंटेंट है। जो अनफिल्टर्ड कंटेंट होता है उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता, वो क्रेडिबल नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी लगी हुई है सबको पढ़ाने के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए, और वो हम ही कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप भी तो कर भी तो हम ही रहे हैं उसको शेयर। और ये एल्गोरिथमिक है। एल्गोरिथमिक से मतलब ये है कि जो, क्योंकि इनके पीछे जो कंपनियां हैं वो आपको वैसा ही कंटेंट फीड कर रही हैं जो आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आप एक सर्टेन टाइप ऑफ यूट्यूब का चैनल देखेंगे, यूट्यूब प्रोग्राम देखेंगे, तो और भी कंटेंट उस तरीके के आपके फीड में आने लगते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पुराना जो ये मीडिया इफेक्ट्स का जो लेगेसी रिसर्च है, लेगेसी मीडिया का, उसके ऊपर अब हमको रीइंटरप्रेट की जरूरत है। लेकिन रीइंटरप्रेटेशन का मतलब ये नहीं है कि एजेंडा सेटिंग खत्म हो गया, फ्रेमिंग खत्म हो गया, सोर्सेज का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। वो इश्यूज अभी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ अभी भी वैसे ही कंस्ट्रक्ट होगी। लेकिन ये जो मॉडल है, जो पहले का मॉडल था, जो पर्सनल इन्फ्लुएंस मॉडल था, मीडिया, ओपिनियन लीडर इन कम्युनिटी और इफेक्ट, वो मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वेब बन गया है वो पूरा नेटवर्क की वजह से। अब आपको ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होगा कि मेज पर किन लोगों का असर पड़ रहा है, क्योंकि आपके फॉलोअर हैं, आपके अपना सोशल फेसबुक का ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम का ग्रुप है, आपका रील का ग्रुप है, हर किसी में अलग अलग पर्सपेक्टिव से सेम ही इवेंट को कई एंगल से आपको मिल रहा है। अब आप पे किसका क्या असर कर रहा है ये डिटरमिन करना, पाथवे डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। कोई ये कह दे कि व्हाट्सएप की वजह से ऐसा हो रहा है या रील की वजह से, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिकॉज कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या एक पर्टिकुलर सोर्स पे नहीं टिका हुआ है। सबके फ़ोन के ऊपर कम से कम 4-5 ऐप है, और फिर अपने दोस्त यार भी हैं जिनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उनसे भी चर्चा हो रही है। तो आज इफेक्ट डिटरमिन करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। ये लेकिन न्यू मीडिया की सबसे बड़ी खासियत है। तो न्यू मीडिया के जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके तरीके से सोचने की जरूरत है। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब यही होता है कि आप सिस्टमैटिकली तरीके से उसके एट्रीब्यूट्स देखें और उससे, तो इंटरैक्टिविटी, एसिंक्रोनस, दैट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति कभी भी देख सकता है उस कंटेंट को, यूजर जनरेटेड कंटेंट, नेटवर्किंग और एल्गोरिथम, ये सारे सिस्टम को समझने की जरूरत है। तो ये अगर हम देखना चाहें तो इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इनके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव शुरू में बताया था, तो अगर हम गेट कीपिंग के ऊपर सोचें कि गेट कीपिंग के बारे में क्या हो रहा है, तो गेट कीपिंग पहले से चेंज हो गई है। अब वो खाली वो जो हिंदी पत्रकारिता में मठाधीश कहते थे इन लोगों को, एडिटर्स को पुराने समय में, कि यही डिटरमिन करते हैं कि क्या समाचार छप रहा है क्या नहीं छप। तो ये जो है गेट कीपिंग अब कुछ लोगों के हाथ में नहीं है। आप और हम भी गेट कीपर हैं। क्यों? हम किसके गेट कीपर हैं भाई? हम अपने व्हाट्सएप से जो स्टोरी फॉरवर्ड करेंगे वही फॉरवर्ड होगी ना हमारे साथ। हम जिसको लाइक करेंगे वही आगे बढ़ेगी। तो हम गेट कीपर हो गए आज की दुनिया में। अगर कोई यूट्यूब में जितने चैनल वाले होते हैं बोलते हैं ना कि सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, तो वो आपको गेट कीपर बना रहे हैं। बोले कि अगर आप लाइक कीजिएगा तो मेरा वीडियो और आगे बढ़ेगा। तो ये गेट कीपिंग का प्रोसेस चेंज हो गया है पहले से। जो कुछ ही लोग एडिटर्स होते थे उनके हाथ में होता था ये गेट कीपिंग, ये गेट कीपिंग अब हम लोगों के हाथ में। ये गेट कीपिंग मीडिया, सोशल मीडिया कंपनियों के भी हाथ में है। क्यों? एल्गोरिथमिक है,
तो वो जो एल्गोरिथम लिखेंगे, जो उसके पीछे सॉफ्टवेयर जो कोडिंग लिखेंगे, वो कोडिंग डिसाइड करेगा कि कौन सी आइटम पुश हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो उनके भी हाथ में है। तो खाली एडिटर्स के हाथ में नहीं रह गया गेट कीपिंग। अब स्प्रेड कर गया पूरे समाज में। एजेंडा सेटिंग और गेट कीपिंग के साथ संबंध है, तो एजेंडा भी इसी तरीके से बिल्ड हो रहा है। हम सब प्ले कर रहे हैं रोल एजेंडा बिल्ड करने में। अब बहुत ही ओवरटली, पहले तो एडिटर्स और जर्नलिस्ट का बड़ा, और सोर्सेज का, स्पेशली एलिट सोर्सेज का बड़ा रोल होता था। तो हम ये सोच सकते हैं कि आज कौन किससे शेयर कर रहा है। तो क्या न्यूज़, हम कौन सा न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। एवरी टाइम व्हेन वी आर शेयरिंग सम स्टोरी, वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ सेटिंग एन एजेंडा इन आवर स्मॉल वर्ल्ड। पूरे देश का एजेंडा तो नहीं सेट कर पाएंगे, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एजेंडा सेट कर ही लेते हैं बाय सेंडिंग समथिंग दैट वी सेंड, राइट, या अपने शेयर अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर। तो गेट कीपिंग का स्वरूप बदल रहा है, और इसको न्यू मीडिया में हम पत्रकारों को समझने की भी जरूरत होती है कि कैसे ये गेट कीपिंग हो रहा है। और फ्रेमिंग पर हमारा कंट्रोल है किस प्रकार से। अगर हम सोशल मीडिया ने हमको फ्रेमिंग पे भी कंट्रोल दे दिया है। जब हम कोई वीडियो भेजते हैं, तो एक तो होता है कि वीडियो कहीं से हमने लिया, किसी का रील या किसी न्यूज़ क्लिप से लिया, और हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड करने के साथ एक तो हमने फॉरवर्ड कर दिया, एक हमने फॉरवर्ड करने के साथ अपना एक कमेंट भी लाया। जैसे ही हमने कमेंट डाला, वो उसको मान लीजिए वो हेडलाइन है स्टोरी का, हम एडिटर हैं और हमने वो हेडलाइन लिख दी स्टोरी के ऊपर। तो जो देख रहा है उसको हम दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इसको इस नजरिए से देखिए, ठीक है। तो हम फ्रेम कर रहे हैं उसको, उसके अंदर जो भी बातें होंगी उसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं देखने के लिए। साथ में हम कई बार ये भी कर रहे हैं कि भाई लोगों के पास बहुत सारे वीडियो आते हैं, तो हम इंपॉर्टेंट बताते हैं कि इसको जरूर देखिएगा। तो ये फ्रेमिंग का भी रोल जो है वो हमारे पब्लिक के हाथ में। तो ये सोशल न्यू मीडिया की जो खासियत हो गई है, ये कि जो ओरिजिनल रोल था पब्लिक का, ऑडियंस का, कंज्यूमर का, वो टोटल फ्रेमवर्क में थोड़ा था, आज वो बहुत बड़ा हो गया। हर प्रोसेस पे, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे उसका असर हो रहा है, और वो न्यू मीडिया के एट्रीब्यूट्स की वजह से हो रहा है, जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। तो थियरीज तो अभी भी रेलेवेंट है, गेट कीपिंग, एजेंडा सेटिंग, फ्रेमिंग, वो थियरीज को, मीडिया इफेक्ट की थियरीज को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आज भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे हम समझें, वो न्यू मीडिया के एट्रीब्यूट्स की तरफ से समझ सकते हैं, और इसी के थ्रू हम मीडिया का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर हम सही तरीके से एसेस कर पाएंगे। और बहुत सिंपलिस्टिक कोई सोल्यूशन नहीं होता है। 2014 में जब बीजेपी इलेक्शन जीत के आई थी, एनडीए, तो उसके 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था इलेक्शन के आने से पहले, और मैंने कहा था पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इज हैपनिंग, और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दिस इंडिया इज गोइंग टू कम टू पावर इन ए ह्यूज वे। तो जब मैंने वो लिखा, तो उस आर्टिकल के मेरे मित्रों ने, पुराने पत्रकार मित्रों ने, अनूप तुमने तो बहुत मतलब यू हैव पुट योर सेल्फ आउट इन द पब्लिक, दो में इतना बोल्डली तुमने कह दिया ये बात, जो और ऐसा होगा नहीं, हमें नहीं लगता। तो अपना रेपुटेशन तुमने इफेक्ट कर लिया, तुमको लोग संघी कर दिया। मैंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने संघी हूँ ना नॉन संघी हूँ। लेकिन जब वो छापा, उसको समझने के लिए जो समय का आपको स्वरूप मीडिया का जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उस समय मैं काम कर रहा था एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आई कुड सी दैट वो किससे मेरे को समझ में आ रहा था, वो पीपल्स रिएक्शन से समझ में आ रहा था। वो जो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स, जो चीज़ लाइक्स हो रही थी, जिस तरीके से जो चीज़ फॉरवर्ड हो रही थी, उससे देख के पता चल रहा था कि इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी के अंदर। तो आप अगर केवल पत्रकार या एडिटर्स की बात करते तो आपको नहीं पता चलता कि वो 2014 में इतना बड़ा, सडनली एवरीबडी विल बी शॉक्ड विद द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो पॉलिटिक्स के ऊपर इम्पैक्ट समझने के लिए आज पब्लिक तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आज हमारे पास तरीके भी हैं न्यू मीडिया की वजह से जानने का कि पब्लिक क्या सोच रही है, नागरिक क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन बहुत वाइड हो गया है, जिसको हम बिग डेटा कहते हैं आजकल, मशीन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कहते हैं, बहुत तरीके से उसको एनालाइज किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें हम किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूशन में कोई अच्छा पत्रकार, जब जिसको मीडिया में काम करने के लिए हम ट्रेन करना चाह रहे हैं, उसको
इस सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। सब हाइब्रिड मीडिया है, सारे मीडिया अब हाइब्रिड मीडिया के रूप में हम देखेंगे इनको। तो जो न्यू मीडिया है, आज आप टेलीविजन चैनल देख लीजिए, उनका वेबसाइट है, उनका यूट्यूब चैनल है। अब इससे क्या हो रहा है कि उनको भी कॉन्टिन्यूसली फीडबैक मिल रहा है अपने ऑडियंस से। दो प्रकार का फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर रहा है, अच्छा कमेंट सेक्शन में बकवास भी बहुत होती है, अभद्र भाषाएं भी बहुत होती हैं, हम उनको साइड कर दें, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत विचार करके भी कमेंट करते हैं। तो एक तो वो कमेंट का फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक जो लेगेसी मीडिया को मिलता है, वो लेगेसी मीडिया के वर्क को बहुत सीरियसली इम्पैक्ट कर रहा है। आप किसी भी अखबार या टेलीविज़न के पत्रकार से बात करें तो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। वो पढ़ते भी हैं कमेंट, वो चाहे बोल दें मैं कमेंट नहीं पढ़ता, दे आर पर्पसली फॉलोइंग हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू इट। दूसरा है कि जब आप उसको लाइक करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं तो आप वोट दे रहे हैं एक तरीके से। अखबार जब हम पढ़ते थे तो अखबार के रिपोर्टर को क्या पता चलता था कि मैंने उसका स्टोरी पढ़ा या उसके बारे में जिक्र किया किसी से। लेकिन आज बिकॉज ये जो हाइब्रिड मीडिया एनवायरनमेंट है, इसमें फीडबैक बड़ा इंस्टेंट है, जो इंटरैक्टिविटी की वजह से आ रहा है, तो इससे मीडिया का स्वरूप तो बदल ही रहा है। और वो जो स्वरूप है उसमें क्या वो मोर पीपल सेंट्रिक हो जाएगा, ये अभी देखना है। जो मैं पहले बता रहा था ना कि वेदर द न्यूज़ इज इंडेक्स टू सोर्सेज, टू कॉमन पीपल और टू एलीट्स, ये डिफरेंस अभी हमको दिखा नहीं है रिसर्च में, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि जब ये फीडबैक जा रहा है, यूट्यूब में हो रहा है। यूट्यूब पे जिन लोगों ने अपना चैनल खोला है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ध्रुव राठी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव राठी पत्रकार नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पत्रकार हैं, जिन्होंने टेलीविज़न छोड़ के या अखबार छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अब उनका कंटेंट पर वो बहुत इम्पैक्ट करता है, उनके ऑडियंस क्या कमेंट करते हैं उनके ऊपर, वो अपना रिपोर्टिंग, अपना काम एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से। और तो ये जो फीडबैक है पत्रकार इंटरैक्टिविटी फीचर की वजह से, इससे ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है। अब क्या कौन सा बहुत फैक्चुअल और बहुत अच्छा सोर्स है, ऐसा कोई सोर्स नहीं है। देयर इज नो सिंगल मीडियम which can be one source that you can go to get factual and accurate news. There is no source like that today. Every source has distortion. Now the question is, what level of distortions is tolerable? And what level of distortion you can see through? That's the only way you can assess. So I cannot say कि ये particular media platform बहुत अच्छा है या ये खराब है, दैट्स नॉट ट्रू। अब जैसे मान लीजिए लोकल न्यूज़, हाइपर लोकल न्यूज़ के क्षेत्र में, मेरठ है, हम आप यहाँ पास है, यहाँ के समाचार तो मुझे इंडिया टुडे नहीं बताएगा ना, मुझे यहीं के मीडिया को देखना पड़ेगा। और वहाँ के पत्रकार से मैं यहाँ के मीडिया के पत्रकार के बारे में पूछूंगा तो बोलेंगे वो लोग तो कुछ बहुत ही घटिया पत्रकारिता करते हैं। एक ठीक है, वो ऐसे बोलेंगे, जबकि ऐसा कुछ, तुम तो वो पत्रकारिता ही नहीं करते जो वो पत्रकारिता करता है। हाइपर लोकल जो होता है, लोकल समस्याओं की, तो बहुत कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सोर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टुडे मोर देन एटलीस्ट 3 or 4 sources of regular news to actually get us some sense that what's happening in the world. So I'm a big, I don't criticize media कि ये ऐसा है, ये खराब है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा। हर एक के अपने अपने डिस्टॉर्शंस हैं, और हम जो मैं बता रहा था आपको डिस्टॉर्शन के बारे में, कैसे होता है डिस्टॉर्शन, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ दोज डिस्टॉर्शंस। अगर किसी में सोर्सेज एक ही टाइप के दिखते हैं तो आपको पता चल गया कि भैया ये तो एक ही तरफ की बात कर रहा है, और जिसमें सोर्सेज वैलिड होते हैं, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सोसाइटी के अंदर, जस्ट फोकस ऑन सोर्सेज। इफ यू रियली वांट टू नो दैट हाउ गुड अ न्यूज़ इज, लुक फॉर सोर्सेज इन न्यूज़। अगर PR एजेंसी सोर्सेज हैं तो सारा न्यूज़ PR एजेंसी का जनरेट है। बाय ह्यूमैनिटी यू मीन? No, I think there is detachment. Media is detached because you cannot do its job if it is not detached. अब मैं एक ट्रेजेडी की स्टोरी कवर करने जाऊँ
और एज ए पत्रकार मैं इमोशनली बिल्कुल ध्वस्त हो जाऊं वहाँ पर, तो मैं कैसे करूँगा उसको? ठीक है, तो ट्रेजेडी लाइफ में रोज आना बहुत कुछ होता रहता है, कहीं ट्रैजिक होता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं पर एक्सीडेंट होता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं पर कोई अच्छा भी चीज़ होता है, कोई छोटा बच्चा कोई स्पोर्ट्स में जीत रहा होता है। तो मैं किसी भी लेवल पर डिटैच्ड होकर करना तो पड़ेगा ही। मीडिया हैज़ टू रिमेन डिटैच्ड। नाउ द क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज इट कांट डू इट्स जॉब। बट along with detachment, क्या ह्यूमनिज्म होना चाहिए स्टोरी के अंदर? दैट्स द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म तो होना ही चाहिए ना। और ज़्यादातर मीडिया ह्यूमनिज्म होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका, उसकी ट्रेनिंग बहुत कम हो गई है। संवेदना जो जनरेट करनी होती है ना, संवेदना आपको जनरेट भी करनी है रिपोर्टर के अंदर, और साथ में रिपोर्टर को डिटैच भी रखना है। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट दैट यू हैव टू बी संवेदनशील होना है लोगों की समस्याओं के बारे में, लेकिन स्टोरी को जब आप कह रहे हैं तो उसको डिटैच रूप से भी कहना है कि भैया मेरा कोई, बिकॉज देन यू बिकम इमोशनल अबाउट इट। सो इट्स अ वेरी, दैट इज व्हाट places like this are training you. That's why you are in a media school, in a media college. You are there to be trained to create a balance between being your humanistic needs as well as the need to be detached while reporting. So that balance has to be created. Humanism has to be there. It cannot be given up, because at the end आप सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हैं ना। तो उस फूड चेन में न्यूज़पेपर्स आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है अभी भी न्यूज़पेपर में ओरिजिनेट होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर्स आर इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि रिटन न्यूज़ में डिटैच्ड होना आसान होता है। यू कैन राइट न्यूज़ फ्रॉम अ डिटैच्ड पर्सपेक्टिव व्हेन यू राइट, बट व्हेन यू स्पीक, टू बी डिटैच्ड इज नॉट दैट इजी। दैट्स व्हाई टेलीविजन इज नॉट दैट डिटैच्ड। उसमें इमोशन बड़ी जल्दी आ जाता है टेलीविजन का। अगर आप बोले में नहीं आएगा तो आपके नॉन वर्बल्स में आ जाएगा, आपके हाव भाव में आ जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होता है उसके अंदर। तो इसीलिए न्यूज़ का जो क्वालिटी ऑफ न्यूज़ है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन वो उसके मीडियम की भी खासियत है, वो रिपोर्टर की खासियत खाली नहीं है, क्योंकि इट्स अ रिटन न्यूज़, इट्स अ टाइप्ड लीनियर थॉट होता है, उसमें प्रोसेस हमेशा लीनियर होता है, वन आफ्टर द अदर। वीडियो कैन बी सर्कुलर, उसकी एडिटिंग बैक एंड फोर्थ हो सकती है, उसका सीक्वेंस टाइम के ऊपर एक लीनियर टाइम नहीं होता है। तो ये सब बातें होती हैं मीडियम प्लेटफॉर्म के डिफरेंस में। लेकिन जो सोशल मीडिया में हम क्यों जाते हैं, जो मैंने पहले बताया ना कि जब येरी काउंटी में पहली स्टडी हुई थी तो लोगों को क्या पता चला था कि अखबार पढ़ के समाचार नहीं का असर होता है, अखबार पढ़ के उसके बारे में चर्चा करके समाचार का असर होता है। ठीक है, तो हम इसलिए जाते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि वो जो वी एज ह्यूमंस रिक्वायर सोशल कनेक्शन। हम न्यूज़पेपर में या मीडिया में कोई चीज़ पढ़कर हम इंडिपेंडेंटली नहीं डिसाइड करते हैं कि इसका क्या असर है या ये सही है कि गलत है। व्हेन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट विद अदर्स, then only we develop a sense of how important the news is or what impact the news can have on us. आज के समय में that conversation has moved to social media. What has happened is this, that जो conversation हम in person कर रहे थे वो हम in person ना करके हम social media के माध्यम से कर रहे हैं वो conversation, लेकिन है वो conversation ही, वो एक सामाजिक वार्तालाप ही है, social communication ही है वो एक तरीके का, लेकिन वो कम्युनिकेशन वैसे हो रहा है। तो कई मायने में आप ये देखिए कि जो जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं या डिजिटल सोशल मीडिया कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एंटायरली सब सोशल फिनोमेना के रूप में वो कोई नई चीज़ नहीं है। बातचीत तो हम पहले भी करते थे, बस मीडिया ने क्या किया है कि उसकी रफ्तार बढ़ा दी है और उसकी रीच बढ़ा दी है। तो बातचीत तो हम अपने दोस्तों के बीच में कर सकते थे पहले, आज हमारे दोस्त जो हैं वो बेंगलोर में भी बैठे हो सकते हैं, हम उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया ने क्या किया है कि जो स्पेस टाइम का जो रिलेशनशिप है कॉन्वर्सेशन के साथ, उसको लूज कर दिया सडनली। और अनजान लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। पहले हम अपने जानकार लोगों से ही केवल बातचीत करते थे, कम से कम एक्वेंटेंस तो होना ही चाहिए था।
अपने क्लास फेलो से बात कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि हाउ मच इंपॉर्टेंस यू आर गोइंग टू गिव टू सोशल मीडिया। दैट मीन्स मेरा सारा न्यूज़ सोशल मीडिया से आता है। मैं कई लोगों से पूछता हूँ, अपने क्लास में जब पूछता हूँ कि तुम्हारा न्यूज़ का सोर्स क्या है, तो बोलते हैं सोशल मीडिया सर। कहाँ से लेते हो न्यूज़? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो मैंने कहा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे न्यूज़ कहाँ से आती है? या तो हम दे रहे हैं या किसी अखबार या किसी मीडियम की न्यूज़ होती है, उसको शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया अपने आप में कोई समाचार तो नहीं बनाता है ना, उसका तो कोई रिपोर्टर नहीं है कहीं पर, उसके कोई सोर्सेज नहीं है। तो इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर कन्वर्सेशन अबाउट न्यूज़ एंड शेयरिंग ऑफ न्यूज़। दैट्स व्हाट इट इज़। So we should be blaming, you might think that, yes, we should blame social media for its algorithm, how it exploits our private data, how it collects data, how it pushes sensational content. We can think in those terms. But in itself, we can't blame it for news because it doesn't create any news. News is created by regular media and us. आज तो हम सब, we are in some sense, हर एक आदमी जर्नलिस्ट है, एटलीस्ट फेसबुक का जर्नलिस्ट तो सभी हैं, हाँ? उस पर लिखते ही हैं, हम फोटो छापते ही हैं, शादी की ही न्यूज़ देते हैं, लेकिन न्यूज़ तो देते ही हैं, बर्थडे की पार्टी की देते हैं, लेकिन देते तो नहीं है इस लोगों को। So that's the part of it. So you have to understand it from that perspective. That's why I was trying to talk about this, that media and conversation about media. इसके रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है। First of all, social media, what will be the future of social media is very difficult to say. Because technology को predict करना is almost impossible. कल कौन क्या इनोवेट करके क्या कौन सो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी कुछ साल पहले, मैं 7-8 साल पहले, मेरी एक स्टूडेंट थी मास्टर्स की, तो वो थीसिस कर रही थी। उसने कहा मैं स्नैपचैट पे थीसिस करना चाहती हूँ। स्नैपचैट आप लोगों ने सुना है ना? हाँ, तो स्नैपचैट पे करना चाहती हूँ मैं। कि क्यों करना चाहती हैं आप स्नैपचैट? तो उसने कहा कि स्नैपचैट का जो कन्वर्सेशन है वो रियल लाइफ कन्वर्सेशन के जैसा है। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते जो जैसे हम बोलते हैं तो उसके बाद तो गायब हो जाता है, आपने सुन लिया, नहीं सुना। अब मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था सोशल मीडिया का कि एसिंक्रोनस है, दैट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्नैपचैट टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने मैसेज नहीं देख लिया, जैसे ही मैसेज देखा, मैसेज गायब हो जाता है उसके बाद, ठीक है? तो शी वॉन्टेड टू सी दैट वेदर दैट इज उसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे। और उसने ये प्रिडिक्ट किया था आपने उसमें कि ये बहुत डोमिनेंट मीडिया हो जाएगा, लेकिन उसका प्रिडिक्शन सही नहीं आया। टुडे स्नैपचैट अमंग ऑल सोशल मीडिया इज एट द लोएस्ट कंज्यूमर यूजर। तो किस सोशल मीडिया का क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या एफोर्डेंसेस पैदा होंगी? एफोर्डेंसेस कहते हैं कि आप किस सोशल मीडिया से क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स जो है, तो वो क्या होंगे फ्यूचर में, ये कहना मुश्किल है। ये दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नाउ कमिंग टू एआई, तो अभी मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एआई के ऊपर। तो एआई में क्या है कि ऑलरेडी एआई इज बीइंग यूज्ड टू राइट न्यूज स्टोरीज। तो आप लोगों ने जो पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म किया है या राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग की क्लास ली है, तो आपने डब्ल्यूज के बारे में सुना होगा, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, राइट, है ना? तो लोगों ने एआई के प्रोग्राम्स लिखे हैं। उन प्रोग्राम्स में रिपोर्टर्स केवल ये फीड कर देते हैं, डब्ल्यूज फीड कर देते हैं, और एआई पूरी स्टोरी लिख देता है, ठीक? तो वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा एआई इस समय ब्लूमबर्ग, एसोसिएटेड प्रेस, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वॉल स्ट्रीट में जो न्यूज़, आज ये स्टॉक ऊपर गया, वो उसमें कोई ज़्यादा कंटेक्स्ट नहीं है ना। तो जिस स्टोरी के अंदर अप्स एंड डाउन्स ही केवल बताना है, कौन आगे है कौन पीछे है, उसके लिए एआई ऑलरेडी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। लेकिन क्या एआई ह्यूमन सेंट्रिक स्टोरी को करेगा, जो आपने पहले पूछा था ह्यूमनिस्टिक एंगल से, वो अभी बड़ा मुश्किल है कहना कि वेदर एआई कैन डू दैट। ChatGPT आ गया, बहुत कुछ आ गया है, लेकिन विल एआई बी एबल टू, क्योंकि जो रिपोर्टिंग है आज के ज़माने में, जो एक तरीके से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह काम करता है, जैसे एक मानव विज्ञान शास्त्री होता है ना, जो समाज के अंदर जाके लोगों से बातचीत करके किसी समाज को समझने की कोशिश करता है। पत्रकार एक तरीके से एक बहुत बेसिक लेवल का मानव विज्ञान शास्त्री होता है।
वो काम एआई कैसे करेगा? कल को रोबोट बना दीजिएगा और वो रोबोट जाके फील्ड में लोगों से बातचीत करेगा, ऑब्जर्व करेगा, पॉसिबल। उसके बारे में क्या नाम है उसको? देखिए क्रिएटिविटी, हाँ नहीं, क्रिएटिविटी तो कब नया स्वरूप आ जाएगा ना। देखिए जब फोटोशॉप और डिजिटल टेक्नोलॉजीज आई, हाँ, तो नए तरीके की क्रिएटिविटी आई। अब फोटोशॉप लेकर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी से भी उसकी अपनी एक नई प्रकार की क्रिएटिविटी आएगी। कैसे आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे? एट द एंड टेक्नोलॉजी इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर सेंसेस, सो इट डिपेंड्स हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। पुरानी क्रिएटिविटी को रिप्लेस क्या नई क्रिएटिविटी करेगी कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। जैसे ग्राफिक आर्टिस्ट होता है, तो आज डिजिटल आर्टिस्ट भी हैं जो केवल कंप्यूटर पर बैठ के कार्टून बनाते हैं, तो क्रिएटिविटी वहाँ भी है, बस फ़र्क बन गया। वो पहले पेन से बनाते थे, आज आप अखबार में, अगर आपके यहाँ प्रभात है उसमें जो कार्टून बनाते हैं, कई लोग आजकल, आप में से कुछ लोग शायद बनाते भी होंगे कार्टून या ड्राइंग बनाते होंगे डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करके। तो क्रिएटिविटी तो है, लेकिन नए प्रकार की क्रिएटिविटी, वो पुरानी क्रिएटिविटी नहीं। तो इट डिपेंड्स हाउ वी यूज इट। टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर निर्भर करता है। हम लोग सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को हाउ टू यूज़ जो डिजिटल पेंट टूल्स हैं, कैसे उनको इस्तेमाल करना है। जो पुराने समय जैसे कार्टून बनते थे या ग्राफिक्स बनते थे, वो कैसे आज आप कंप्यूटर पर बैठ के बना सकते हैं। लेकिन एट द एंड जो स्टोरी आप कहना चाहेंगे, जो उससे मैसेज बनाना चाहेंगे, तो क्रिएटिविटी से ही आएगी। लेकिन आप पुरानी क्रिएटिविटी भी रह सकती है, वो साइमल्टेनियस। एक और चीज़ है जो आई एम अ फर्म बिलीवर इन इट, आई कुड बी रॉन्ग, नो टेक्नोलॉजी गेट्स डिस्प्लेस्ड, वैनिशेस, नो टेक्नोलॉजी वैनिशेस। इट जस्ट जो स्पेस है ना टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी आ जाती है। अखबार ख़त्म नहीं हुए, अखबार आज भी हैं, बस लेकिन क्योंकि हमारा जो 24 घंटा है वो तो उतना ही है, तो उस 24 घंटे की हिस्सेदारी में एक और हिस्सेदार आ गया। यही होता है, टेक्नोलॉजी डजंट वैनिश। कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी विल नेवर वैनिश। अब बातचीत करते हैं हम स्नैपचैट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, हम इन पर्सन बातचीत कर सकते हैं। इन पर्सन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, बट क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है, तो इट गेट्स स्प्लिट इनटू दीज न्यू टेक्नोलॉजीज, हाउ वी इंटरैक्ट विद अदर। कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो बोलेगी भाई आपके 24 घंटे में से मुझे भी कुछ समय दीजिए। तो जो समय है वो आपका बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजीज़ के बीच में, लेकिन ख़त्म नहीं होती। ये मेरा मानना है, मतलब इट्स नॉट अ, यू कैन टेक इट एज माई हाइपोथेसिस विच हैज़ नॉट बीन टेस्टेड एंड कन्फर्म्ड येट। देखिए आपको मैं बस एक चीज़ का जवाब दूंगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रैंकिंग क्यों है क्या है, इसको नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। जिस कंट्रीज़ की रैंकिंग सबसे टॉप पर है, उन कंट्रीज़ के समाज को देखिए, उनका समाज कैसा है। आपको पता है किस कंट्री की रैंकिंग सबसे टॉप पर है? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है। अब फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे की समाज को देखिए, उनका समाज कैसा है। उनका मोनोक्रोमैटिक समाज है, एक ही प्रकार के लोग रहते हैं उनके देश में, विविधता नहीं है उनके समाज में। जो थोड़ी बहुत विविधता है शहरों में है, इमिग्रेंट्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं शहरों में। जिस समाज में विविधता नहीं होती है, वहां की पत्रकारिता नीरस और नंबर 1 की होती है। जिस समाज में विविधता बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर द्वंद्व भी होता है, समाज में कंपटीशन भी होता है, समाज के अंदर इंटरैक्शन, केओस भी होता है, और वहाँ की पत्रकारिता में वो वही झलकता है। इंडिया की पत्रकारिता जो है, इतने भाषाओं वाला देश, इतने प्रकार के लोग, इतने धर्म,
इतने नस्ल, इनके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं हर ग्रुप के, इनकी वजह से कंपटीशन है सोसाइटी के अंदर। उस कंपटीशन की वजह से जो डिस्टॉर्शन है मीडिया का, वो इतनी वैरायटी से डिस्टॉर्ट हो रही है। जितना सोसाइटी डाइवर्स होगा उतना वहां की मीडिया के अंदर आपको वैरायटी दिखेगी। जब वैरायटी दिखेगी तो आपको फ्लॉज भी ज्यादा दिखेंगे उसके अंदर। अगर हम अमेरिका है, जैसे अमेरिका की रैंकिंग जो है वो कोई 20-25 के आसपास आती है, ठीक है, तो अमेरिका भी काफी डाइवर्स कंट्री है। जो जितने कंट्रीज जिनकी रैंकिंग टॉप पर है वो सब मोनोक्रोमैटिक है, एक ही रंग के देश हैं। वो छोटे देश हैं, आबादी कम है और एक ही प्रकार के लोग रहते हैं। उनके यहां ना रिजर्वेशन का झगड़ा है, उनके यहां ना कोटा है का झगड़ा है, उनके यहां किसको क्या मिलेगा राजनीति से उसका झगड़ा नहीं है, क्योंकि सब एक समान है, ठीक है। ना धर्म का झगड़ा है, नस्ल का झगड़ा है, ना किसी चीज का झगड़ा है। झगड़ा होने की वजह ही नहीं है कि सब एक ही है, ठीक है। तो वैसे समाज की पत्रकारिता का टॉप में आना किसी भी रैंकिंग में कोई मायने नहीं रखता। मैं ये फ्रीडम फोरम और ये जितने रैंकिंग वाले इन लोगों से कई बार कह चुका हूं, आप उस फॉर्मूला में आप डिवर्सिटी का स्कोर डालिए और फिर रैंक करके दिखाइए। क्योंकि देखिए, समाज एक सामान्य तो कोई भी समाज नहीं हो पाएगा कभी भी। जहां डिवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर असमानताएं भी उतनी ज्यादा होगी। अमेरिका में बहुत असमानता है कंपेयर टू फिनलैंड और स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। तो ये वजह है इसकी। अब हर समाज, हर मीडिया सिस्टम के अंदर खराब मीडिया भी होती है और अच्छी मीडिया भी। अब अमेरिका में भी आपको राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग मीडिया भी है, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग मीडिया भी है। वहां पर भी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये सब कुछ है। हमारी रैंकिंग बढ़ जाती है क्योंकि हम इतने बड़े हैं ना। अब सोचिए, कोई सबसे ज्यादा अखबार है दुनिया में हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा टेलीविजन स्टेशन है हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भाषाओं में ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो हर किसी का डिस्टॉर्शन ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, वो सारा डिस्टॉर्शन का स्कोर जोड़ के देखिएगा तो बहुत बड़ा दिखेगा ना वो स्टोर। तो दैट्स द प्रॉब्लम, जिसके ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है मेरे मानने में समझ से, क्योंकि ये इतना सिंपलिस्टिक तरीके से उसको मेजर करना रैंकिंग को आसान नहीं है ये करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी हमारी पत्रकारिता बहुत अच्छी है इंडिया की, ऐसी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रैंकिंग है ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये रैंकिंग, हम सोशल साइंस में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ मेजर करना हो, एम्पिरिकल सोशल साइंटिस्ट हर चीज़ मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। कोई भी चीज़ क्वांटिफाई करना हो तो क्वांटिफिकेशन, हर चीज़ गिनी जा सकती है, लेकिन हर चीज़ को जब यह कहते हैं कि हर चीज़ को हम गिन सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि उसका स्केल क्या हो और वो स्केल वैलिड है कि नहीं जिस स्केल से हम गिन रहे हैं। अब वो स्केल की वैलिडिटी, अब वही स्केल स्वीडन पे भी लागू कीजिएगा और वही स्केल एक इंडिया पे भी लागू कीजिएगा, अमेरिका पे भी लागू कीजिएगा, जो कि कर नहीं सकते। तो वैलिड ही नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जा रहा है, मेरा ही मानना है। The selection is based on professional values and norms that you're trained in, right? You're trained in what is important, right? And what values and norms you want to apply to news. But there will always be some element of subjectivity. If the element of subjectivity becomes huge, then it's problematic. But to say there will be no subjectivity in selection of news, that's not true. There will be some subjectivity. Editors have their own whims and fancies. उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं कि भाई मैं इस पे करूँगा रिपोर्ट। रिपोर्टर्स की भी पसंद की विषय होते हैं। आप बहुत सारे रिपोर्टर हैं, आप मेरठ क्षेत्र में हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो किसानों के बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं। उन खुद किसान परिवार से आते हैं, तो जब किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको थोड़ा सा उनका सब्जेक्टिव व्यू आ जाता है कि भाई ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो चाहेंगे कि अखबार के
पहले पन्ने पे 4 पिक्चर छपे और किसानों का समाचार छपे, ठीक है, तो उतना सब्जेक्टिविटी रहेगा। लेकिन at the end it all depends on your professional training, whether you can apply the norms and values of news, what makes news. Bulk of it is usually determined by that, right? And that's how you do selection. But ideology can also play a role. जैसे मैंने कहा कि कुछ अखबार, कुछ मीडिया भगवाधारी हैं, कुछ मार्क्सवादी हैं, तो वो उनका असर दिखता है उनके अखबार के कवरेज के ऊपर, आइडियोलॉजी। तो ये वन हैज़ टू जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, यू नो, वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू थिंक, लेट्स से इफ आई एम Marxist or I am not a Marxist or I am not a Bhagwadari, I am not a, you know, Sanatani, I shouldn't say that I will not read the news because it's not from my perspective. I should be, the purpose of college education is to have critical thinking, to be able to discriminate, to able to understand the news by taking out the ideology from it. You should be able to do that. That's the first basis of education, right? वो जो पहली कहानी मैंने सुनाई थी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की, उसमें यही तो फ़र्क उन्होंने पाया, जिसका एजुकेशन जितना ज़्यादा था वो उतना जल्दी डिस्क्रिमिनेट कर गया कि भाई ये तो कहानी बताई जा रही है। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट? Thank you everyone for your engaging questions and active participation. A special thanks to Dr. Anoop for sharing his valuable insights and helping us understand the evolving media landscape and its influence on society and politics. Now, to express our heartfelt gratitude, I now invite Head of Department, Professor Dr. S.C. Thaledi sir, to kindly present a token of appreciation to our esteemed guest. Please accept this humble memento in Angavastram as a symbol of our respect and appreciation of our valuable time. Sir, really it's our pleasure to have you here with us, and really it will be a memorable lecture for the student and for us also, and thank you so much sir for coming here. और हमारे लिए, क्योंकि हम लास्ट 8 और 10 मंथ से ट्राई कर रहे थे कि आप जो है लेक्चर के लिए हमारे यहाँ पर आए, एंड सीरियसली पॉसिबल हो पाया ड्यू टू आर HOD सर प्रोफेसर डॉक्टर S.C. थलेडी। आई एम वेरी थैंकफुल टू HOD सर कि वो हमारे लिए कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को लेकर आते हैं जो हमेशा हमें याद रहेंगी कि जर्नलिज्म फील्ड में हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, और आज पर्सनल ग्राउंड पर भी हमें आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर। थैंक यू सो मच। एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक टू आर VC सर, मेजर जनरल डॉक्टर G.K. थपलियाल सर कि उन्होंने हमें परमिशन दी इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड CEO मैम who always with us और she always encourage us कि हम इस तरह के lectures अपने students के लिए organize कर पाएँ। After that I would like to thank to all my faculty members जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सहयोग दिया है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत पीसफुली इस लेक्चर को सुना और उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे और एक इंटरेस्ट दिखाया कि येस वी आर हियर। सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन यस हमारे लिए लेक्चर स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो हमें अपना 100% यहाँ पर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। Thank you very much students. The students who came from Department of Liberal Arts, I am very thankful to you students, and Faculty of Science and Department of Animation. Some of the students went due to their examination. I am very thankful to them also.